we talk about all these things, so these are not e-commerce operator, whereas these qualifies as OIDAR services, which are very different from the e-commerce operator. So आज कहाँ क्या difference है, short में बताती हूँ. The difference is mainly the human intervention. Acha, one thing more I want all of you to mention. You want me to use English or you particularly want me to use Hindi or English? मिक्स चलेगा, कोई इश्यू नहीं है. हिंदी भी प्रेफरेबल है हमारे लिए. Okay, so let's have a mix, right, Mahavir ji? I will prefer English. Thank you for not confusing me with writing so many things. Thank you. So friends, let me share the PPT with you all. Sir, I hope the PPT is visible. Yeah. Right. So friends, this topic is going to be filled with a number of examples and a very colorful PPT, which we will be doing today. I will be making a comparison of the e-commerce operator vis-a-vis OIDAR services also. So, सबसे पहले, if we talk about the e-commerce operator charging section, let me open the chat box so that I can interact with you all. Right. Charging section, you know, the concept of e-commerce operator is itself discussed in the charging section only. So this is the charging section 9 in front of you, and likewise we have IGST section 5, which is the charging section. Now talking about this charging section 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, but when we cross as 9.3, 9.4 in front of you deals with the RCM provisions. Likewise in the section 9.5, Sanjay ji, accounting entry video is running and some voices coming. Is there any problem, sir? I don't see it from my end. No issue. I will sort it out. Right. You continue, please. Okay. So friends, if I talk about the e-commerce operator, section 9.5 e-commerce operator, you just have to remember कि okay, 9 subsection 5 के भी कुछ e-commerce operator होते हैं, and as we will proceed further, ये 9.5 वाले जो e-commerce operator है, बट फ्रेंड्स एक चीज जरूर माइंड में रखना कि ये 9.5 के ई कॉमर्स ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के ई कॉमर्स ऑपरेटर है. सो ये कुछ सर्विसेज हैं which the government has notified, specified services which are covered under 9.5. Can anybody tell me how many services are notified under 9.5? Can anybody tell me how many services? Quickly. Only and only 3 services are notified under 9.5. 3 services are notified under 9.5, which we will be talking in a short while. So 9.5 में there are 3 services that are being notified. In these particular service, it says that specify the category of service, the supplies of which shall be paid by e-commerce operator. You know, in case of 9 subsection 5, the e-commerce operator is deemed as a supplier. Is deemed as a supplier. It is deemed as a supplier कि भाई उसी को supplier मान लिया जाएगा. चलिए आगे चलते हैं तो फिर देखेंगे. But before that, I would like to draw your attention towards 2 provisos that are given here. You know what these provisos says? E-commerce operator, even if you don't have a physical presence in a particular taxable state, taxable entry, taxable territory, still you are liable to take the registration there. अगर आपका कोई ऑफिस नहीं है, कोई physical presence नहीं है, you must make a representative there, and who will be representing you, and the GST number will be taken. Friends, अभी आगे चल के हम बात करेंगे कि why these provisions are made. क्योंकि TCS को comply करना था. E-commerce operator is required to take the registration in each and every state wherever it is operating. And even if it is outside India,
Still, if he is rendering any services in India, he is supposed to take the registration in India by making a representation here. And you know, these e-commerce operators are nowadays on the radar of the government, because there are certain e-commerce operators that are operating in India. May it be the income tax, may it be the GST, but they have not taken the registrations. So that is why this proviso says that you are required to take the registration. Now, if we move further, let me talk about that. Okay, is there any definition of e-commerce given in the Act? Yes. E-commerce as well as e-commerce operator, both are defined in the GST Act. Now, what is e-commerce? Section 2, clause 44. My dear friends, I will read it as a clause 44 because these are the definition. Each definition is individual in it. Okay, Rahul. So each definition जो है वो individual definition है. So एक का दूसरे से कोई link नहीं है, क्योंकि एक का दूसरे से कोई link नहीं है तो हम इसको subsection नहीं बोलते. We read it as a clause. So section 2 clause 44 कहता है भाई e-commerce operator का means, यानी ये एक exclusive definition है, goods और सर्विसेज और बोथ आप सप्लाई कर रहे हो, इंक्लूडिंग द डिजिटल प्रोडक्ट्स. अब ये डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है? एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दी, ई बुक्स भी और स्वाइप फाइल्स भी. ई कॉमर्स का मतलब है भाई जब आप कोई भी गुड सर्विसेज या कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स को एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू सप्लाई करते हो, दैट इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर. ई कॉमर्स. अब ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? इसकी डेफिनेशन भी 2 clause 45 में दी हुई है. एंड अगेन इट इज अ मीन्स डेफिनेशन. एनी पर्सन who owns or operates or manages digital or electronic facility or platform for e-commerce. Friends, e-commerce operator और कुछ नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है. अब एक मैं आप लोगों से आंसर चाहती हूँ, और जितना आप मुझे रिवर्ट करेंगे उतने ज्यादा सारे पॉइंट्स हम कवर कर पाएंगे. एक बात बताइए, अगर मैंने कहा जो मैनेज करता है, अगर मैं अपने प्रोडक्ट्स अपनी साइट पर सेल करती हूँ, विल इट अमाउंट टू ई कॉमर्स ऑपरेटर? यस और नो? यस और नो तो कोई भी लिख सकता है और क्विकली लिख सकता है, राइट? We are sitting all here sitting for the purpose of learning. So whatever you get, do right. Do you think if I am being a chartered accountant, चलिए राहुल जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं. राहुल जी अपनी एक साइट बनाते हैं, अपनी ही सर्विसेज उसके ऊपर लिंक करते हैं, तो क्या राहुल जी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं? यस और नो? यस और नो? जी नहीं, राहुल जी एक ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है. क्यों? ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर अपने प्रोडक्ट्स अपनी साइट पे देता है तो वो सप्लायर है. वो अपने प्रोडक्ट्स को वो किसी और के प्रोडक्ट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म मैनेज नहीं कर रहा है. सो ई कॉमर्स ऑपरेटर वो है जो अपनी साइट पे दूसरों के प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करता है, राइट? अब कौन कौन से मॉडल्स है ई कॉमर्स ऑपरेटर में? ई कॉमर्स ऑपरेटर में अगर मैं ट्रेडिशनल मॉडल्स की बात करूं ना फ्रेंड्स, तो ट्रेडिशनल मॉडल्स थे बिजनेस, कंज्यूमर और गवर्नमेंट. 3 सेक्टर्स में डिवाइड होते थे. व्हाट आर दोस 3 सेक्टर्स? भाई B2B सप्लाईज हो रही हैं, जैसे Amazon बिजनेस. आपको पता है अगर आप कोई लैपटॉप परचेज करते हैं Amazon से और आप सोचते हैं, अगर आप लैपटॉप परचेज करते हैं और आप सोचते हैं कि आप अपना जीएसटी नंबर डाल दें उसमें, तो Amazon आपका जीएसटी नंबर नहीं लेता. क्यों? वो कहते हैं जी ये तो B2C सप्लाईज का पोर्टल है. सो लाइकवाइज B2B सप्लाईज के लिए Amazon बिजनेस एक सेपरेट बना हुआ है. ऐसे ही B2C सप्लाईज, कंपनी एंड कस्टमर्स, अरे नॉर्मल Amazon. थर्ड, कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर, हम टेंडर्स भरते हैं. पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड लोगों के बीच में. B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट. C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, लाइक रिवर्स ऑक्शन. जब कंज्यूमर जो है वो बिड लगाता है, वो तो नॉर्मल
कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब रिवर्स बिड की बात कर रहे हैं। C2C लाइक eBay, जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को गुड सेल करता है। C2G क्लाइंट टू द गवर्नमेंट, जब हम टेंडर्स अप्लाई करते हैं, कोटेशंस भेजते हैं। अब गवर्नमेंट लाइकवाइज G2B, G2C, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, व्हेन टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टेक अप द ट्रांजैक्शंस एंड सो ऑन। ये तो थे हमारे ट्रेडिशनल मॉडल्स। अब अगर माय डियर फ्रेंड्स मैं न्यू मॉडल्स की बात करूं तो सबसे पहले हमारा मॉडल आते हैं मार्केट प्लेस मॉडल। क्या मुझे कोई मार्केट प्लेस मॉडल का एग्जाम्पल दे सकता है? क्या मुझे कोई मार्केट प्लेस मॉडल का एग्जाम्पल दे सकता है? सर मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? What do you think is the example of marketplace model? It is Amazon, Flipkart. These all are on marketplace model. ये मॉडल होता क्या है? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सबसे पहले देखिए 3 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में। क्या? फर्स्ट, देयर इज अ सप्लायर। सेकेंड, there is an e-commerce operator, and third is the customer. Now what happens? ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपनी साइट पे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता है। जैसे ये प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करता है, कस्टमर इस प्रोडक्ट्स को व्यू करता है और सप्लायर इसे सप्लाई करता है, शिप करवाता है, ऑर्डर की गारंटी देता है कि हाँ जी हमारे पास ये चीज अवेलेबल है। एक बात बताइए, क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने पास कोई इन्वेंट्री मेंटेन करता है? द आंसर इज नो। आपको पता है Amazon is the biggest retailer in the world with no stores on its own. कोई स्टोर नहीं है अपना इसका, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों से प्रोडक्ट बाय करता है। एग्जाम्पल, अगर आप Amazon से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं ना, तो ये जैसे नाइकी का या सोनी का या फिर ब्यूटी बाजार मुंबई, वहां से इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। दे आर जस्ट द फैसिलिटेटर्स, दे आर नॉट गोइंग टू कीप द इन्वेंट्री विद देम. So e-commerce marketplace model is a model where the Amazon, Flipkart, e-commerce operator, they do not maintain any inventory. That is maintained by the supplier. Now, अगर मैं इनकी बात करूं, ऑर्डर आया, गुड्स डिलीवर करवा दिए, ई-कॉमर्स में ये ई-कॉमर्स की रिटर्न भरेंगे और यही सप्लायर का TCS जो है वो कलेक्ट करेंगे। दे विल कलेक्ट द TCS, दे विल डिडक्ट द TCS ऑफ द सप्लायर एंड देन ये उसको पेमेंट को रिमिट करेंगे। बट अगर मैं मार्केट प्लेस मॉडल से हट जाऊं, अच्छा इसमें इनवॉइस किसका जाता है? आप जब भी Amazon और फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स इनवॉइस जाता है सप्लायर का। गुड्स अवेलेबिलिटी भी वही कराता है, इनवॉइस भी वही इश्यू करता है, इनवॉइस सप्लायर का जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि जो, अच्छा एक चीज और, इसमें नॉर्मल सप्लाई मानी जाएगी सप्लायर की। ई कॉमर्स ऑपरेटर सिर्फ एक फैसिलिटेटर है जो अपनी कमीशन चार्ज करेगा, राइट? नाउ सेकंड इज द इन्वेंट्री मॉडल, इट इज ऑपोजिट ऑफ मार्केट प्लेस मॉडल। क्यों? अब देखो इसमें मैंने पर्सन्स कितने बनाए, सिर्फ 2। कारण इन्वेंट्री मॉडल में पर्सन, इंडिया में ये मॉडल अभी ज्यादा नहीं है बट आ रहा है। क्यों ज्यादा नहीं है? क्योंकि इसमें जो प्रोविजंस है, जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं, वो बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स है। सो एज अ रिजल्ट इन्वेंट्री मॉडल आपको ज्यादातर मिलेगा जैसे अलीबाबा चाइना, या आजकल Amazon भी आ रहा है इस लाइन में। इस मॉडल में जो इन्वेंट्री है यानी जो गुड्स हैं वो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने पास मेंटेन करता है। डिस्प्ले भी उसका, साइट भी उसकी, वेयरहाउस भी उसका, स्टॉक भी उसके पास रहता है। तो इसमें थर्ड पर्सन की जरूरत क्या है? इन दिस केस तो आई विल से ओके, अलीबाबा अगर जो कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी हमारी? ब्यूटी बाजार मुंबई। सो ब्यूटी बाजार मुंबई से
अलीबाबा गुड्स परचेज कर लेगा, अलीबाबा उसको कस्टमर को देगा। तो ये कुछ कुछ वैसा मॉडल नहीं है जो अभी हम राहुल जी के बारे में बात कर रहे थे क्या, कि राहुल जी आप अपनी ही साइट बनाते हैं और खुद ही पहले गुड्स प्रोक्योर करते हैं और खुद ही उसके ऊपर डिस्प्ले करते हैं। सो दिस इन्वेंटरी मॉडल में सप्लायर का रोल नहीं आता डायरेक्टली। सप्लायर से पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर परचेज कर लेता है और फिर वो आगे देता है। सो इट इज अ नॉर्मल सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई। और इसमें टैक्स इनवॉइस किसका जाएगा, क्योंकि अब ई कॉमर्स ऑपरेटर परचेजिंग कर चुका है तो इनवॉइस भी इसी का जाएगा कस्टमर को। नाउ थर्ड केस, हाइपर मार्केट मॉडल। ये भी एक तरह का वैसा मॉडल ही है जो अमेज़न यूज करता है, लेकिन इस मॉडल को अमेज़न ने बहुत अच्छे से यूज किया है। क्यों? लोकल कस्टमर तोड़ने के लिए, कारण टू मीट आउट द कंपटीशन। To meet out the competition, the seller, the e-commerce operator sometimes provide the services or provide the goods below the cost at which they are acquiring. आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? Opportunity cost है। ये तो हम मार्केट शेयर ग्रास्प कर रहे हैं। Once we will grab this market share, उसके बाद there will be a monopoly. So Amazon has very successfully implemented this type of model which is hyper market model. but ये भी वैसा ही मॉडल है कि इन्वेंट्री वो मेंटेन नहीं करता, मार्केट शेयर एक्वायर करने के लिए सिर्फ कॉस्ट से बिलो सेल कर रहा है। नाउ आफ्टर दिस कम्स योर एग्रीगेटर मॉडल। एग्रीगेटर मॉडल माय डियर फ्रेंड्स सर्विसेज के केस में चलता है। सर्विसेज के केस में इट इज ऑलमोस्ट लाइक मार्केट प्राइस मॉडल। एग्जाम्पल लाइक योर टैक्सीज, ओला उबेर। मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस? सो गुड टू सी योर क्वेश्चन कमलेश जी, एटलीस्ट पता तो लगा मुझे कोई सुन रहा है। फ्रॉम द सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू, who is sundry debtors? I guess you want to write who is sundry debtor. सर सप्लायर के व्यू पॉइंट से, जैसे मैंने पहला केस बताया कमलेश जी, जो हमारा केस था मार्केट प्लेस मॉडल का, तो पैसा किससे आना है? जो पैसा तो चाहे कस्टमर से आना है, लेकिन कलेक्शन कौन करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर करता है। आई विल लेट यू नो इनवॉइस किसके नाम का बनता है और कैसे लिखा जाता है जब हम आगे जाएंगे। आई विल क्लैरिफाई दिस विद अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग एंट्री कि आप उसको कैसे डालेंगे, राइट? चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। एग्रीगेटर मॉडल। एग्रीगेटर मॉडल में सब कुछ सेम है, बस आपको ये पता नहीं लगता कि प्रोडक्ट किसका है, ब्रांडिंग किसकी है। आपको एक गाड़ी आती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ ओला और उबेर, यू डोंट नो कि भाई ये गाड़ी XYZN लिमिटेड की है कि ये सिर्फ X नाम के ड्राइवर की है। इसमें प्रोवाइडर सप्लायर ही है, बट हिज नेम इज नेवर शोन ऑन द देयर। बट ये अपने जो एग्रीगेटर होता है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर होता है, ये अपने नाम से ही उसको सप्लाई करता है। लास्ट इज आफ्टर दिस इज द एम कॉमर्स मॉडल। एम कॉमर्स क्या है? आजकल आप सब वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। कैसे? मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल से कुछ साइट्स ऑपरेट होती हैं। सो एम कॉमर्स इज एन इवॉल्विंग मॉडल विच इज टॉकिंग अबाउट कि भाई आप मोबाइल के थ्रू ही ऑर्डर प्लेस करोगे, एक ऐप डाउनलोड करोगे और वायरलेस से ही उसके थ्रू आप ऑपरेशंस करते हो। एग्जांपल इज द मोबाइल बैंकिंग। नाउ इन दिस केस माय डियर फ्रेंड्स, हमने जब ये मॉडल्स डिस्कस किए कि भाई मार्केट प्लेस है, इन्वेंट्री है, अब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेके जा रही हूँ। हमने चार्जिंग सेक्शन की बात की थी, जिसको मैंने कहा था हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं चार्जिंग सेक्शन की बात करूं, 9.5 और 5.5 हमारे दो सेक्शंस हैं। दोनों में कहा गया है कि इन सर्विसेज के केस में, पहली बात सर्विसेज ओनली,
shall be paid by the e-commerce operator by treating the same as supplier. Treating, deemed supplier. डीम्ड सप्लायर किसको माना जाएगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर को माना जाएगा। अब पहले देखते हैं इसमें सर्विसेज कौन सी, 3 सर्विसेज लिंक्ड है। फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, सेकंड एकोमोडेशन, थर्ड हाउसकीपिंग। हमने तीनों एग्जांपल्स नीचे लिखी हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, एकोमोडेशन एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज, राइट। अब अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की बात करूं फ्रेंड्स, एक बात सोचिए, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स ले लीजिए या फिर इलेक्ट्रीशियन ले लीजिए इन हाउसकीपिंग सर्विसेज लाइक अर्बन क्लैब। Government felt the need that instead of collecting the taxes from small persons, अरे मैं कहाँ इलेक्ट्रीशियन के पीछे जाऊं, मैं कहाँ ड्राइवर के पीछे जाऊं, it is better in order to safeguard the time and everything and the cost of collection of tax, instead of these person, let's make, किसको बना दोगे? डीम्ड सप्लायर, हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही बना दें। अरे भाई, अब अर्बन क्लैब तुम ही मेरे लिए एक डीम्ड सप्लायर हो। फ्रेंड्स देखिएगा, पिक्चर में 3 पार्टीज हैं, कौन कौन? अर्बन क्लैब, इलेक्ट्रीशियन एंड द सप्लायर और रिसीवर, सॉरी रिसीवर, राइट। अब कमलेश जी को अपने घर में एक इलेक्ट्रिसिटी का काम कराना था, ही अप्रोच्ड अर्बन क्लैब। प्रोवाइडर कौन है? इलेक्ट्रीशियन है, बट जीएसटी के केस में इसको कुछ नहीं माना जाएगा। यूसी, अर्बन क्लैब, तुम ही ई कॉमर्स ऑपरेटर हो और तुम ही डीम्ड सप्लायर हो। जीएसटी सिर्फ 2 पर्सन्स को जानता है इनमें। No third person will come into picture in case of these 3 services. So my dear friends, पहले तो यहाँ सिर्फ services covered है, सिर्फ और सिर्फ services covered है। Now कौन सी सर्विस? पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कराने की सर्विसेज बाय अ टैक्सी, मोटर कार, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल। वर्ड्स देखिएगा, पर्सन, सप्लायर कौन? कोई भी पर्सन। अभी जब हम नीचे दोनों पॉइंट्स देखेंगे, एकोमोडेशन में या फिर योर हाउसकीपिंग सर्विस, उसमें यहाँ पे कुछ और वर्ड्स भी एडेड है। ये देखिए, ये देखिए, और ये वर्ड्स पहली वाली में नहीं है। इसका मतलब क्या है? कोई भी पर्सन अगर किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करता है, रेडियो टैक्सी, मोटरसाइकिल, व्हाटसोएवर, इन दैट केस ओला, उबेर, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही डीम्ड सप्लायर मान लिया जाएगा। उस पर्सन की, यानी ड्राइवर, यानी जिसकी गाड़ी है, वो चाहे थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे रजिस्टर्ड हो, चाहे अनरजिस्टर्ड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई कॉमर्स ऑपरेटर तुम ही डीम्ड सप्लायर माने जाओगे। इसका मतलब ओला, उबेर एटसेट्रा, मेरू कैब्स, इन सब केसेस में कोई रेलेवेंस नहीं है कि जो प्रोवाइडर है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। सेकेंड, बट पॉइंट नंबर 2 और 3 में ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 2 और 3 कहते हैं कि अगर सामने वाला पर्सन जिसका गेस्ट हाउस है, जिसका होटल है, जो लॉजिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसके केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर तुम तभी जिम्मेदार हो, तभी डीम्ड सप्लायर हो, अगर वो पर्सन एक छोटा पर्सन है। छोटा मतलब बिलो द थ्रेशोल्ड है। अगर वो पर्सन बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट है, यानी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, अगर वो थ्रेशोल्ड से अबव है, तो ही ई कॉमर्स ऑपरेटर जिम्मेदार है, नहीं तो वो पर्सन खुद जिम्मेदार होगा। बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट,
लाइकवाइज हाउसकीपिंग में भी। इसका मतलब भाई अगर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, होटल ये बिलो द थ्रेशोल्ड है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जिम्मेदार है, नहीं तो वो खुद ही जिम्मेदार है, फिर वो 9(5) का ऑपरेटर नहीं रहेगा। इसका मतलब हमने 9(5) के ऑपरेटर में या कहूं 5(5) के ऑपरेटर में 3 तरह के पर्सन पढ़ लिए, पढ़ तो लिए। एक बात बताइएगा, क्या 9(5) या 5(5) के ऑपरेटर पे टीसीएस लग पाएगा? क्या टीसीएस लग पाएगा? जी नहीं। इसमें जीएसटी कितने पर्सन एज्यूम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 2%। जब सप्लायर और ई कॉमर्स ऑपरेटर एक ही पर्सन है तो भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर तुम टीसीएस काटोगे किसका? सो 9(5) और 5(5) के ई कॉमर्स ऑपरेटर पर टीसीएस के प्रोविजंस कभी नहीं लगते, कभी नहीं लगते। नाउ फ्रेंड्स, जो अब मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूं, दिस चार्ट इज अ मास्टर चार्ट to understand what is an e-commerce operator and its portal. Now, in this case, have a look. A Limited ने एक पोर्टल स्टार्ट किया, ये मैं पहले ही बता चुकी हूं। अगर वो अपने गुड्स और सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर पोर्टल के थ्रू भेजेगा, नहीं, ये ई कॉमर्स नहीं है, ये कोई क्वेश्चन ऑफ टीसीएस नहीं आएगा और पूरा का पूरा थ्रेशोल्ड भी मिलेगा। नो क्वेश्चन ऑफ टीसीएस, रजिस्ट्रेशन अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस होगी, अरे ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपने गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहा है। सेकंड, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन पोर्टल के। अगर मैं इंफॉर्मेशन, अब सुनिए जरा, पंकज जैन जी को या मैं अभिषेक जी की बात करूं, अभिषेक जी कहते हैं कि भाई मुझे तो ना एक प्रोडक्ट खरीदना है। अभिषेक जी क्या परचेज करना चाहते हैं आप, लैपटॉप या कुछ और? चलिए आज अभिषेक जी को एक अच्छा सा माइक्रोसॉफ्ट सरफेस परचेज करा देते हैं। अभिषेक जी कहते हैं जी मुझे माइक्रोसॉफ्ट परचेज करने, बट आई वांट टू चेक कि इसके किस किस वर्जन में क्या क्या है, लेटेस्ट वर्जन में क्या प्राइसिंग है, क्या टेक्नोलॉजी है। अब अभिषेक जी क्या करते हैं, गूगल पे डालते हैं कि हे गूगल बाबा मुझे बताइए कि क्या क्या अच्छा है, क्या क्या फीचर्स है। इनको टॉप 5 ब्रांड्स आ जाते हैं या फिर टॉप 5 मॉडल्स का कंपैरिजन आ जाता है। कुछ ऐसे पोर्टल्स होते हैं जो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमें नहीं बताते कि भाई आप इस साइट के थ्रू परचेजिंग कर सकते हो। जब वो बताते नहीं, वो सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो पोर्टल भी कोई क्वेश्चन ऑफ टीसीएस नहीं है, वहां तो कुछ बाय और सेल ही नहीं करा रहे। राइट नाउ थर्ड, अब हम ये तो ग्रे वाले तो हमारे निकल गए भाई, ये तो ई कॉमर्स थे ही नहीं। एक तो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है और दूसरा तो कुछ बेच ही नहीं रहा, ही इज नॉट सेलिंग एनीथिंग। नाउ वी कम टू द पॉइंट, गुड्स और सर्विसेज अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर अदर पर्संस के बेच रहा है, फ्रेंड्स इसमें वो लोग भी कवर्ड है। हो सकता है कोई पर्सन कहता है जी मेरे पास तो कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर क्लाइंट ही नहीं है, तो फिर भी आपके पास ऐसे क्लाइंट तो बहुत हैं जो अपने प्रोडक्ट ई कॉमर्स के थ्रू बेचते हैं। अरे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो अपना खाना स्विगी और जोमेटो के थ्रू बेचते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कराए हुए हैं। सो हम सिर्फ वो नहीं पढ़ेंगे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, हम उनको भी देखने जा रहे हैं जो पर्सन्स अपनी सप्लाई थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर देते हैं। सो अब देखते हैं फ्रेंड्स, जब भी आपको देखना है कि भाई इस पर्सन को, sir you are requested to kindly mute the other participants, right? Thank you. Now अब अगर जैसे ही आपको ये चेक करना है कि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर पे ये पर्सन क्या सप्लाई कर रहा है, इसको टीसीएस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? अरे पहले ये तो चेक कर लो गुड्स है कि सर्विस है, गुड्स है या सर्विस है। सो अगर गुड्स है या सर्विस है,
फ्रेंड्स गुड्स के केस में तो कोई इशू ही नहीं है। क्यों? गुड्स के केस में अगर मैं बात करूं तो गुड्स 100% जो भी पर्सन अपनी गुड्स ई कॉमर्स पोर्टल पे लिफ्ट करता है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, ऑनलाइन सेल्स पे, वेयरसोएवर, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसका टीसीएस भी कटेगा। बिल्कुल सेक्शन 24 पे आ रहे हैं महावीर जी। सो उसका टीसीएस भी कटेगा। लेकिन सर्विसेज के केस में मुझे दो चीजें चेक करनी है। क्या ये 9(5) की सर्विस है कि अदर सर्विस है? क्योंकि अगर 9(5) की सर्विस है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर तुम ही डीम्ड सप्लायर हो, तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवानी है, तुम ही सब करता धरता हो। जो पर्सन सप्लाई कर रहा है, कारपेंटर, ड्राइवर, होटल, गेस्ट हाउस, उसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। और 9(5) में तो क्वेश्चन ऑफ टीसीएस अराइज ही नहीं होता। क्यों? इसमें तो दो ही पर्सन लॉ एज्यूम करता है। बट अगर ये अदर सर्विसेज है, नाउ टेल मी, माय क्वेश्चन टू यू इज, स्विगी और जोमेटो इज कवर्ड बाय 9(5) और नॉट? स्विगी और जोमेटो 9(5) में कवर्ड है या नहीं? नाउ क्या ये कवर्ड है? नो, absolutely no. Very right, Rahul ji and Divya ji. They are covered under other services. अब सुनिएगा, ध्यान से इस प्रोविजन को सुनिएगा। आप लोगों ने, जैसे महावीर जी ने अभी सेक्शन 24 का रेफरेंस दिया, मैं भी सेक्शन 24 पे आती हूँ। वो कहता है अगर आप एक सप्लायर हैं, चाहे गुड्स के चाहे सर्विसेज के, अदर देन 9(5) को छोड़ दीजिए, आपको अपनी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवानी है। सेक्शन 24 तो यही बोल रहा है। इसका मतलब कोई रेस्टोरेंट, कोई भी पर्सन जो अपनी सर्विसेज, आपको पता है रेस्टोरेंट चाहे खाना देता है बट इट इज अ सर्विस एज पर शेड्यूल नंबर 2, अगर वो कोई भी सर्विसेज देता है, इन दैट केस उसे उस सर्विसेज के लिए अपनी, क्योंकि वो ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सप्लाई कर रहा है, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब जिसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था एज पर सेक्शन 24, लेकिन एक नोटिफिकेशन आई। कैन एनीबॉडी टेल मी द नोटिफिकेशन नंबर? लेट्स हैव अ लुक। इट इज नोटिफिकेशन, अरे सिर्फ पहला नंबर ही लिख दो फटाफट से। नो विशाल जी, नॉट 10 पता है आप कहां चले गए? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो हम सीएस पे लगती है, 65/2017 नोटिफिकेशन नंबर 65। और नोटिफिकेशन नंबर 65 ने बोला कि ठीक है सेक्शन 24 तो मैंडेटरी करता है, लेकिन अगर आप अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो मैं आपको थ्रेशोल्ड लिमिट का 20 लाख या 10 लाख, मैंने 40 नहीं लिखी, सर्विसेज में 40 लाख लिमिट नहीं मिलती। अगर आप अदर सर्विसेज दे रहे हो, रेस्टोरेंट हो, खाना सप्लाई कर रहे हो, 20 या 10 लाख तक की आपको एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाएगी। और एक बात याद रखना, गोल्डन रूल, टीसीएस तभी लगेगा अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है और वो टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज देता है। टैक्सेबल तो यहां तो भाई 65/17 ने एग्जेम्प्ट कर दिया। अगर उस पर्सन को एग्जेम्प्ट कर दिया तो टीसीएस भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही अदर सर्विसेज में रेस्टोरेंट क्रॉस करेगा 20 लाख का थ्रेशोल्ड, उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया और उसको टीसीएस भी लग जाएगा। सो अगर तो सर्विसेज है तो हमें देखना है 9(5) की है या अदर सर्विसेज है। अगर अदर सर्विसेज है तो 20 लाख का थ्रेशोल्ड नोटिफिकेशन ने दिया है, एक्ट ने नहीं दिया। थ्रू नोटिफिकेशन दे प्रोवाइडेड एन एडिशनल बेनिफिट, जैसे अभी विशाल जी ने 10/17 बताए। 10/17 पता क्या थी? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस करने जा रहे हो। अब विशाल जी यहाँ बैठ के, सूरत में बैठ के
दिल्ली का ऑडिट करने जा रहे थे, तो पहले तो इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कर दी, फिर 10/17 ने कहा नहीं नहीं विशाल जी 20 लाख तक की छूट है, राइट विशाल जी। अब इसमें भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो अदर सर्विसेज लिस्ट कराते हैं उनको 65/17 में थ्रेशोल्ड बेनिफिट दे दिया गया। नाउ गुड्स में ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, गुड्स में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है 9(5) का, क्योंकि 9(5) में तो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज थी। सो एज अ रिजल्ट गुड्स के केस में 100%। अब एक एग्जांपल दूं, मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, दोनों ब्रदर्स हैं, एक ऑयल सेल करता है, एक ऑयल सेल करता है थेरेपी ऑयल्स, और दूसरा थेरेपीज प्रोवाइड करता है। अब सुनिए, दोनों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है, बट जो ब्रदर ऑयल सप्लाई करता है उसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है क्योंकि वो गुड्स हैं, और अदर पर्सन जो थेरेपीज प्रोवाइड करता है वो अदर सर्विसेज में आता है और उसके लिए 20 लाख की थ्रेशोल्ड का बेनिफिट अवेलेबल है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर इनफ हियर। अब अरे यही तो हमने डिस्कस किया, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोविजन, आप सबने बताया भी सेक्शन 24 डील करता है, और कौन कौन से क्लॉजेस ई कॉमर्स से डील करते हैं, तो थोड़े थोड़े बोल्ड मार्क किए हैं मैंने। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 10 ई कॉमर्स ऑपरेटर से डील करते हैं, ई कॉमर्स खुद से, कि अच्छा सुनो अगर तुम 9(5) के ई कॉमर्स ऑपरेटर हो ना, हाँ जी मैं तो 9(5) का हूं, मैं तो टैक्सी वाला हूं, मैं हाउस कीपिंग में से हूं, मैं होटल हूं, MMT, ट्रिवैगो एंड सो ऑन, तो तुम्हें पॉइंट नंबर 4 लगेगा और तुम्हें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ओला, उबेर, MMT, अर्बन क्लैब। लेकिन पॉइंट नंबर 10 कहता है अगर आप 9(5) के ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है बट आप TCS के लिए लायबल है, यानी Amazon, फ्लिपकार्ट जब ये किसी के प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये TCS उसका डिडक्ट कर रहे हैं, तो आपको पॉइंट नंबर 10 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। अब इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 ई कॉमर्स से डील नहीं करता, पॉइंट नंबर 9 डील करता है पर्सन, the person who is supplying the goods or services through e-commerce operator। याद कर लीजिए वही 2 एग्जाम्पल, थेरेपीज एंड थेरेपी ऑयल्स, गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, राइट। लेकिन कौन से, अरे 9(5) वाले सप्लायर को तो रजिस्टर ही नहीं होना, ड्राइवर हो गया, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, दे आर नॉट सपोज टू रजिस्टर अदर देन 9(5) वाले, क्योंकि पहले केस में तो दे आर द ई कॉमर्स इज द डीम्ड सप्लायर। सो ये वही नोटिफिकेशन है। अरे बाप रे इतनी बड़ी सी क्वेरी, ये टॉपिक फिनिश करते हैं फिर लेते हैं किसकी क्वेरी। सर मेरा तो चैट बॉक्स ही इतना ओपन नहीं हो रहा, संजय जी आप ऑरली पूछ लीजिएगा ये क्वेरी, राइट मुझे बड़ा सा करना पड़ा है चैट बॉक्स आपकी क्वेरी पढ़ने के लिए। चलिए हाँ जी वापस आते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर, पहला हम 4 नंबर पॉइंट कवर कर रहे हैं। अब देखो एग्जांपल से देखते हैं, 3 सर्विसेज तो हमें पता लग गई कौन कौन सी हैं, ओला, उबेर, होटल और अर्बन क्लैब। अब रूम बुक हुए थ्रू MMT, अब संजय जी जा रहे थे रूम बुक कराए थ्रू MMT लायबल हो जाएगा GST रजिस्ट्रेशन के लिए, MMT लायबल हो जाएगा GST रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकंड, मिस्टर एक्स ने होम स्टे, मिस्टर एक्स जो है वो होम स्टे प्रोवाइड करते हैं थ्रू MMT, लेकिन उनकी अपनी टर्नओवर 23 लाख है। तो याद करिए मैंने क्या कहा था, सेकंड केस एकोमोडेशन में तभी तक ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल रहेगा अगर वो 20 लाख से नीचे होगा, क्योंकि ये मिस्टर एक्स जो है खुद ही 23 लाख पे हैं, तो इनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल नहीं होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं ना, हमने कहा था ई कॉमर्स सप्लाइंग
पर चलिए पहले हम ये करते हैं पॉइंट नंबर 10, एवरी ई कॉमर्स, भाई 95 वाला तो 4 में ही कवर हो गया था। अदर देन 95 वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनको टीसीएस डिडक्ट करना है वो पॉइंट नंबर 10 में कवर्ड है, पॉइंट नंबर 10 में कवर्ड है। नाउ माय इशू टू यू इज, चलिए एक केस स्टडी डिस्कस करती हूँ आपके साथ। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक वेजिटेबल सेल करता है ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज whether he is required to get mandatory registration, yes or no? जल्दी से बताइए, whether he is liable to get mandatory registration, yes or no? अरे भाई yes or no तो लिख दो। A person who is selling the organic vegetables, कमलेश जी कहते हैं नहीं, मैं वेजिटेबल वाले की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रीन ग्रोसर, आई एम टॉकिंग अबाउट द ई कॉमर्स ऑपरेटर। कमलेश जी जल्दी से बता दीजिए नो क्यों, नो क्यों? रीजन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं इसके लिए सामने वाले को टैक्स टीसीएस ही नहीं डिडक्ट करना, टीसीएस ही नहीं डिडक्ट करना तो उसके लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो 20 लाख तक का क्या एंजॉय कर सकता है? थ्रेशोल्ड एंजॉय कर सकता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जहां ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी 20 लाख का थ्रेशोल्ड मिल सकता है। क्या मुझे कोई और एग्जाम्पल बता सकते हो? एक और एग्जाम्पल बता सकते हो? चलिए मैं बताती हूँ। एक ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर है अभी नया नया, न्यू ई कॉम के नाम से, वो फूड डिलीवरीज करता है, लेकिन उसके सारे पर्सन 20 लाख की थ्रेशोल्ड से नीचे है। क्योंकि सारे पर्सन 20 लाख की थ्रेशोल्ड से नीचे हैं, उसको कोई टीसीएस नहीं काटना, तो न्यू ई कॉमर्स ऑपरेटर भी 20 लाख का थ्रेशोल्ड इंजॉय कर सकता है। आई होप, कई लोग कहते हैं ई कॉमर्स तुम्हारे लिए तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, but in such cases when they are dealing only in the exempt products, when there are all the persons who are in services and they are below the threshold, मैं गुड्स नहीं बोला क्योंकि गुड्स के केस में अगर टैक्सेबल गुड्स है तो थ्रेशोल्ड मिलनी ही नहीं है, बट सर्विसेज के केस में क्योंकि नोटिफिकेशन 65/17 है, थ्रेशोल्ड मिलनी है और सारे थ्रेशोल्ड से नीचे है 52 सेक्शन में टीसीएस डिडक्ट होना ही नहीं है। एज अ रिजल्ट उनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। पॉइंट समझ आया कि इट क्रॉस्ड ओवर द हेड? शुड आई कंटिन्यू? शुड आई कंटिन्यू? यस यस यस, ओके चलिए। नाउ पॉइंट नंबर 9, अब यहाँ पे उस पर्सन की बात कर रहा है जो रेस्टोरेंट है और जो खाना सप्लाई करता है। लॉ ने मैंडेट किया कि भाई तुम्हें तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अदर देन 95 वालों को। 95 वालों को जरूरत नहीं है, लेकिन ड्यू टू नोटिफिकेशन बेनिफिट दे आर नॉट सपोज्ड टू डू। नाउ व्हाट इज दिस? अब हमने मॉडल्स पढ़ लिए, क्या करते हैं वो पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि टीसीएस लगता कैसे है। अच्छा एक बात बताना, वैसे मैंने दिखा दिया है, टीसीएस का रेट क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस? कुछ तो लिख दो, मुझे पता चले। आई एम नॉट टॉकिंग टू दिस कंप्यूटर, रादर आई एम टॉकिंग टू यू ऑल। राइट, 1%, absolutely right. All are, now I can see everyone typing. सूरत नहीं बुलाया, बट यहाँ बैठ के सूरत वालों से बात तो की जा सकती है थ्रू दिस चैट बॉक्स। यस, 1% रेट है 1%, टीडीएस का रेट 2% है, टीसीएस का रेट 0.5 1% है। नाउ केस स्टडीज देखते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्या बात है योगेश जी? योगेश जी कहते हैं जी नेट वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन, आगे आएगा योगेश जी पॉइंट, वेरी वेल सेड। नाउ सप्लायर कहां बैठा है? हरियाणा में। ओके, अब इमेजिन करिए, राइट, द सप्लायर हरियाणा, गुड्स आर सप्लाइड इन राजस्थान। अब गुड्स राजस्थान में जा रहे हैं, सेक्शन 10 कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड्स।
मूवमेंट ऑफ गुड्स तो राजस्थान में एंड हो रही है, तो हरियाणा वाला सप्लायर क्या लगाएगा, IGST लगाएगा। ठीक है, किसके प्लेटफॉर्म के थ्रू बिक रहे हैं गुड्स, सेल हो रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हरियाणा में बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। IGST का 1% डिपॉजिट कराना है, करवा देगा, वो TCS कलेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 1%, एट द रेट ऑफ 1% ऑन IGST, नो प्रॉब्लम। केस नंबर 2, सप्लायर भी हरियाणा में, गुड्स सप्लाई भी हरियाणा में हुए, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा, C और S लगेगा कहाँ का, हरियाणा का। ई कॉमर्स कहाँ बैठा है, ही इज ऑल्सो रजिस्टर्ड इन हरियाणा, बैठा है मतलब रजिस्टर्ड है, सो वो भी हरियाणा में रजिस्टर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना लॉगिन ओपन करेगा, C और S का 1% डिपॉजिट करा देगा। प्रॉब्लम कहाँ, प्रॉब्लम थर्ड केस, पर्सन हरियाणा में, गुड्स सप्लाई हरियाणा में, बट ई कॉमर्स तो दिल्ली बैठा है। सर, one nation, one tax is a myth. One nation, one tax is a myth. दिल्ली का C और S, हरियाणा का C और S अलग अलग है। S छोड़ दो, C भी अलग अलग है। कहने को गवर्नमेंट कहती है जी इट इज वन नेशन वन टैक्स, विच इज नॉट सो, इट इज जस्ट वन नेशन यूनिफॉर्म टैक्स। मैं सूरत आती हूँ, सूरत आके मैं एक होटल बुक कराती हूँ, मैं उस होटल का क्रेडिट अपने पंजाब के नंबर पे नहीं ले सकती। रीजन, अरे वो पंजाब का C और S, सूरत का C और S है, गुजरात का C और S है, वो पंजाब की C और S पे नहीं मैच करेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर, तुम अपने दिल्ली के लॉगिन में हरियाणा का C और S का TCS डिपॉजिट नहीं करा सकते, इसलिए अब याद करो जरा 9(5) और उसकी प्रोवाइजोस क्या कहती थी, अरे भाई तुम्हें हर जगह पे रजिस्ट्रेशन लेना होगा जहां जहां पे तुम ऑपरेशनल हो। ई कॉमर्स ऑपरेटर तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें हरियाणा में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और आप मानेंगे इनकी हर जगह पे, Amazon और फ्लिपकार्ट की हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, बिकॉज उन्हें वो अक्रॉस इंडिया डील कर रही है। बट किसी ने इशू नहीं पूछा, मैम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या, अरे ई कॉमर्स, अब लेट्स सपोज योगेश जी अपना ई कॉमर्स ऑपरेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म, इनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम है YKP, चलिए Y से ले लेते हैं, Y is the name of his e-commerce operate platform। अब ये कहते हैं जी मैं तो सूरत में बैठा हूं, हाँ मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस भी सूरत में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझसे रेंट डीड मांगोगे, रजिस्ट्री की कॉपी मांगोगे, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। बट अब मैं गुड सप्लाई कर रहा हूं दिल्ली में, आप मुझे बोलते हो दिल्ली जाके रजिस्ट्रेशन ले लो, कैसे ले लूं, वहां पे तो मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, ना मेरा कोई पर्सन है, ना मेरा कोई प्रूफ है। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, इनकी रजिस्ट्रेशन के सेपरेट प्रोविजन दिए और बोला कि देखो तुम्हें TDS और TCS कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार हो, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन सबमिट करनी है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन का तो तुम्हारा GST 0 REG 07 है, अब हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेनी है। प्रॉब्लम तो यहां अराइज हो गई, क्यों, जिस स्टेट में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है उसका क्या करूं, अरे कोई बात नहीं, जहां तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तुम वहां भी अपने हेड ऑफिस का एड्रेस दे सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, योगेश जी आपके वहां सूरत में रेंजेस बनी हुई हैं, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3, तो ऐसे ही दिल्ली में भी रेंजेस थी, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3, एड्रेस तो डाल दिया सूरत का, एप्लीकेशन लगा दी दिल्ली में, कौन सा ऑफिसर डील करेगा, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3 या रेंज 4, कौन सा, दिल्ली का तो एड्रेस ही नहीं है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, इन्होंने GST में ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो अलग अलग बनाया, अलग अलग बनाया। अब अगर मैंने कहा कि जी ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्या, ये जाती ही दूसरे ऑफिसर के पास है, एज अ रिजल्ट उन्होंने कहा आप हेड ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए, जुरिस्डिक्शन ही अलग है।
हर स्टेट में जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर एक पर्सन है जो ई कॉमर्स वालों के साथ डील फॉर करता है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट। सो इसके पार्ट बी में आप क्या करेंगे, आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस डालेंगे, आप अपना टीसीएस लगाएंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन वहां पर भी हो जाएगी। अब एक और बात बताइए, किसी ने बैटरीज परचेज की है अमेजोन से? यस और नो? अभी अभी हमने टैब परचेज कराया था, अभी अभी हम बैटरीज परचेज करा रहे हैं। आजकल आप अमेजोन की बैटरीज परचेज करने जाते हो ना, तो अमेजोन की बैटरीज के केस में वो दो तरह की बैटरी सेल करते हैं। एक तो आपको ड्यूरासेल की बाय करनी है, पैनासोनिक की बाय करनी है, कि अमेजोन की अपनी बाय करनी है। तो फ्रेंड्स, जहां अमेजोन अपनी बैटरीज खुद सेल कर रहा है, क्या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है? यस और नो? यस और नो? नो। नो। उसका मतलब अमेजोन, अगर आजकल आपको पता है अमेजोन अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करता है, अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है। सो इस केस में अमेजोन तुम्हें दो रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। और वैसे भी माय डियर फ्रेंड, अमेजोन अपनी कमीशन अर्न करता है। जब वो कमीशन अर्न करता है, अपनी इनकम वो एज अ नॉर्मल सप्लायर दिखाता है, फॉर्म REG 06 में रजिस्ट्रेशन लेता है। और जहां वो ड्यूरासेल की बैटरीज बेच रहा है, ब्यूटी बाजार का प्रोडक्ट बेच रहा है, उस केस में वो अपनी रजिस्ट्रेशन एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर बना करता है। यानी दे हैव टू टेक द टू सेपरेट registrations. For the first registration 06, he is required to file normal GSTR 1, normal GSTR 3B. अपनी कमीशन पे टैक्स देगा 18%, अपनी सेल पे टैक्स देगा एज पर इट्स प्रोडक्ट। जहां वो टीसीएस के लिए लायबल है, वहां वो भरेगा रिटर्न GSTR 8। अब हमने टीसीएस के प्रोविजन किए, सेक्शन 52 डिस्कस कर रहे थे। अब इतना लंबा चौड़ा सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, इसको समरी फॉर्म में देखते हैं। मैंने आपको पहले कहा था अमेजोन, स्विगी, जोमेटो, ये सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विसेज में है और इनके ऊपर टीसीएस लगता है ना। यहाँ पे गुड्स प्लस इनवॉइस रिसीवर के पास जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर। फ्रेंड्स, ये जो स्लाइड मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, इसमें आपको समरी में ई कॉमर्स ऑपरेटर के सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अब देखिए, आपको सप्लायर रेस्टोरेंट वाला था, गुड्स एंड इनवॉइस रिसीवर को गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर उसके थ्रू पेमेंट आई, टीसीएस काटेगा और सप्लायर को पेमेंट कर देगा। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द कंडीशंस? यहाँ जरूरी है, ये तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था। सेकंड पॉइंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास पेमेंट आना जरूरी है। अगर पेमेंट आती है आपकी नॉट थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे OLX, डायरेक्ट डीलिंग बिटवीन द रिसीवर, इन दैट केस टीसीएस अप्लाई नहीं होता है। टीसीएस तभी होगा जब पेमेंट जोमेटो के थ्रू आए। थर्ड पॉइंट, गुड्स और सर्विसेज टैक्सेबल होने चाहिए। तभी याद है मैंने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का एग्जांपल दिया था। फोर्थ पॉइंट, 9(5) की सर्विसेज नीचे, क्यों? 9(5) में तो टीसीएस लगता ही नहीं है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए एक बात बताइए, राहुल जी एक रेस्टोरेंट है, बोलता है मुझे कि चलो आज कुछ खाने की, अच्छा क्या खाएंगे? सब पिज्जा खाएंगे, चलिए आज पिज्जा खाते हैं, वी ऑल हैव अ गुड पिज्जा टुडे। दिस रेस्टोरेंट इज सेलिंग द पिज्जास, नाउ इट इज ऑल्सो लिस्टेड ऑन जोमेटो एंड स्विगी ऑल्सो। ये रेस्टोरेंट मुझे बोलता है कि ऐसा है, मुझे तो पिज्जा सप्लाई करना है, 5% का ही रेट लगना है, तो क्या फर्क पड़ता है मैं रेगुलर नंबर में जाऊं कि कॉम्पोजिशन में जाऊं? क्यों? अरे इस सर्विस में तो 5% टैक्स है, क्रेडिट तो दोनों जगह नहीं है, तो व्हाई नॉट टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन? क्या वो कॉम्पोजिशन में जा सकता है या नहीं जा सकता है? क्या वो कॉम्पोजिशन में जा सकता है या नहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। वेरी राइट अर्पित जी एंड मनीष जी। बट
ये प्रोविजन कब से चेंज हुआ? 1/1/2021। इससे पहले सिर्फ गुड्स में कंडीशन होती थी कि गुड्स वाले डीलर सकते जो ऑनलाइन डील करते हैं। सो पहले सारे रेस्टोरेंट्स कॉम्पोजिशन में कवर्ड थे। कुलचे ले लीजिए, पिज्जाज ले लीजिए, व्हाटएवर दे वर सप्लाइंग, बिकॉज सर्विसेज कवर्ड नहीं थी। वो कॉम्पोजिशन में भी होते थे तो भी सप्लाई कर सकते थे, लेकिन 1 जनवरी से गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर कर दिए गए और कह दिया गया कि अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हैं तो आप अपनी सप्लाई ई कॉमर्स के थ्रू नहीं कर सकते, वेदर गुड्स और सर्विसेज। और आरसीएम के ट्रांजैक्शंस पे टीसीएस नहीं लगता। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। अब हम वही पॉइंट पे आते हैं जो योगेश जी ने कहा, 1% नेट का करना है। क्यों? अरे भाई, ई ऑपरेटर में चीजें जाती कम है और वापस ज्यादा आ जाती हैं। सो दैट इज व्हाई दे मंथ में जितनी सप्लाईज हुई और उसमें से जितनी रिटर्न हो गई वो नेट करके टैक्स करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर नेट नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे? प्लीज टेल मी। कुछ नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल मुकेश जी और राहुल जी, उस मंथ में तो टीसीएस नहीं लगेगा, लेकिन वो लैप्स होगा और वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। Negative values to be ignored in current as well as future tax period. No carry forward is allowed. अच्छा एक और बात बताना, ये प्रोविजन सप्लायर वाइज देखना है कि मंथ वाइज देखना है? सप्लायर वाइज देखना है और मंथ वाइज देखना है। फ्रेंड्स, इट इज टू बी चेक्ड दिस वे, supplier wise and month wise. Absolutely. Example आपके सामने है, सप्लायर ए 1 लाख 1/20 की रिटर्न, इग्नोर। सप्लायर बी सेपरेटली, सो 45,000 के ऊपर टीसीएस लगेगा। चलिए नाउ कमिंग बैक, एग्जाम्पल आपके सामने, फटाफट से केस स्टडी देख लेते हैं। बोथ, yes, both, absolutely, Manish ji and Arpit ji. Now, aggregate value of intrastate supplies कितनी थी? 37,55,000। 37,55,000। 95 की सप्लाईज किसकी थी? 5,50,000। अरे 95 की सप्लाईज तो पहले ही बाहर कर दो, उसके ऊपर तो टीसीएस लगता ही नहीं है। ओके, उसमें से कितनी सप्लाईज रिटर्न हो गई? 6,20,000। तो नेट कितनी बची? 25। फ्रेंड्स, वी समटाइम्स फॉरगेट टू माइनस द 95 सप्लाईज। अल्टीमेटली 25,85,000 पे 1% टीसीएस लगेगा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हमारा कौन सा था? ब्यूटी बाजार मुंबई। सो ब्यूटी बाजार मुंबई में अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं थ्रू फ्लिपकार्ट। हु विल डू द ई इनवॉइसिंग? ब्यूटी बाजार और फ्लिपकार्ट? जल्दी से बताइए, who will do the e-invoicing? Let's study the linkage between the e-invoicing and this. Okay, ब्यूटी बाजार करेगा, राइट अर्पित जी? और कोई with a different opinion? ब्यूटी बाजार, ओके, मनीष जी कहते हैं जी ब्यूटी बाजार ही करेगा। Any other? Friends, an option has been given. ऑप्शन, मधु जी आ रही हूं आपके पॉइंट पे भी। अब मनीष जी और मधु जी और एक नाम ऊपर और था जो ऊपर रन कर गया, इन दोनों के आंसर को कंबाइन कर दीजिए। ई इनवॉइसिंग में ऑप्शन दिया गया है, इनवॉइस तो मधु जी ब्यूटी बाजार का ही होगा, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था मार्केट प्लेस मॉडल में। इनवॉइस तो ब्यूटी बाजार का ही होगा, लेकिन जो ई इनवॉइसिंग है वो मधु जी ब्यूटी बाजार भी कर सकता है। और एक ऑप्शन दी गई है कि भाई फ्लिपकार्ट भी आईआरएन जनरेट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ब्यूटी बाजार।
अब अगर तू ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जनरेट की तो असेस किसको मिलेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी मिलेगा और सप्लायर को भी मिलेगा। अगर सप्लायर ने खुद किया यानी ब्यूटी बाजार ने खुद किया तो ई कॉमर्स ऑपरेटर तुम्हें असेस नहीं मिलेगा, फिर सप्लायर अपना असेस खुद ही रखेगा। अच्छा एक बात बताओ, और थ्रेशोल्ड किसका देखना है? थ्रेशोल्ड किसका देखना है? 50 करोड़ का। 50, जल्दी से बता दो। यस, इट इज ऑफ ओनली एंड ओनली ब्यूटी बाजार। क्यों? सप्लायर कौन है? ब्यूटी बाजार। तो थ्रेशोल्ड भी किसका देखेंगे? सप्लायर का देखेंगे। राइट मनीष जी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने ये भी लिंकेज पढ़ ली। नाउ अच्छा एक और बात बताना, क्या गोल्ड पे टीसीएस लगता है? क्या गोल्ड पे टीसीएस लगता है? कितने % से लगता है? पंकज जी कहते हैं नहीं लगता है, राहुल जी कहते हैं लगता है। सो 1 वोट ईच। फ्रेंड्स गोल्ड पे भी टीसीएस लगता है, नो मैटर व्हाट इज द रेट ऑफ द आउटपुट, 1% सही लगता है। राहुल जी नॉट 0.1, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज 1%। फ्रेंड्स एक चीज और, जैसे ही ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, अगर आपका क्लाइंट ई कॉमर्स के साथ डील करता है, प्लीज मेक श्योर उसका जीएसटीआर 8 जो वो 10 दिन में भरता है और आपका जीएसटीआर 1 यानी सप्लायर का जीएसटीआर 1 मैच करना चाहिए। अगर उसमें मिसमैच होगा तो आपको नोटिस आएंगे। जो वो टीसीएस काटता है वो आपके क्रेडिट लेजर में नहीं जाता, जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपके कैश लेजर में जाता है। और अगर ये एक्सेस हो जाए, आपके आउटपुट से ज्यादा हो जाए, तो आप इसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, वो अपनी रिटर्न भरेगा। एडिशनल पावर्स दी गई हैं ऑफिसर्स को, डीसी को, कि कोई भी वो नोटिस सर्व कर सकता है, स्टॉक चेक कर सकता है, हेल्ड बाय द सप्लायर इन द ऑपरेटर गोडाउन। लेट्स सपोज सप्लायर ने उसकी प्लेस को अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर की गई है, जैसे कई ट्रांसपोर्टर्स के केस में हम करते हैं, मेरा माल वहां पड़ा रहता है ट्रांसपोर्टर पे, हम उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस को अपनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इन ऑल सच केसेस एडिशनल पावर्स है ऑफिसर के पास, वो स्टॉक चेक कर सकता है, वो सप्लाई का मिसमैच पे नोटिस इशू कर सकता है, और आपको 15 दिन के अंदर अंदर उस नोटिस का रिप्लाई देना है। अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपको 25,000 into 2 की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। Matching of GSTR 8 with GSTR 1 is very much required. Otherwise mismatch का नोटिस आएगा। अब सुनिए, अगर तो गलती सप्लायर की होगी तो पूरा टैक्स एलिमेंट, उसने कोई सेल थी दिखाई ही नहीं तो पूरा टैक्स एलिमेंट पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर उसने ई कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस मिस कर दिया तो उसमें एडिशन टीसीएस की होगी, इंटरेस्ट टीसीएस एलिमेंट पे लगेगा 1% पे। आई थिंक सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल, राइट? अब देखते हैं आगे। कई बार ऐसा होता है, चलिए आज गोवा घूमने चलते हैं, अब तो वैसे मालदीव्स एक्सेट्रा ऑल आर ओपन, तो जहां जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। होटल चेक किया त्रिवेगो पे, बुकिंग कराई त्रिवेगो पे, लेकिन त्रिवेगो ने आगे बुकिंग कराई एमएमटी से, मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो टीसीएस कौन काटेगा? सीधी सी बात, जो सप्लायर को पेमेंट करेगा। एक जरा एग्जांपल देख ले, हैव अ लुक। दिस इज मिस्टर कोरोना फ्री। अब ये तो कोरोना फ्री है, ये तो जाए कहीं भी घूमने, चाहे मालदीव्स भेज दो चाहे गोवा भेज दो। वो गए पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर पे यानी त्रिवेगो पे, त्रिवेगो आगे गया एमएमटी पे, एमएमटी ने होटल हयात बुक करा दिया। अब जब इन्होंने यहाँ रेडिसन बुक करा दिया, सो इस केस में टीसीएस कौन काटेगा? ई कॉमर्स नंबर 2, द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर, राइट? बहुत सारे एफएक्यूज है, बहुत सारे हमने कवर भी कर लिए। फॉरेन वालों को यहाँ रजिस्ट्रेशन होना है, हर स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लो,
GSTN वाइज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नेट सप्लाईज सप्लायर लेवल पे लेनी चाहिए, एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे TCS नहीं लगता, रिवर्स चार्ज पे नहीं लगता। सो ये सारे पॉइंट्स FAQ के हमने डिस्कस किए हैं। नाउ TCS एंट्रीज माय डियर फ्रेंड 2A के पार्ट C में आती हैं, 2B में नहीं आती और 2B से मैच भी नहीं होंगी, इसलिए आपको मैनुअली फीड करनी पड़ती है, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं ये हमारे कैश लेजर में चली जाती हैं। अब मेरा एक सप्लायर है जो E-कॉमर्स के थ्रू ऑयल बेच रहा था ना, हाँ ऑयल सेल कर रहा था, थेरेपी ऑयल्स। नाउ उसको अपनी सप्लाईज कैसे दिखानी है? अगर तो B2B है तो 4C में, 5B में अगर B2C लार्ज है, और 7A2 में GSTR1 के अगर B2C स्मॉल है। दिक्कत कहाँ आ रही है? एक चेकबॉक्स आता था स्टार्टिंग में, E-कॉमर्स सप्लाईज थ्रू E-कॉमर्स ऑपरेटर। फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं तो वो चेकबॉक्स नहीं दिखेगा, GSTN बाबा ऐसे ही चलता है, वो चेकबॉक्स नहीं दिखेगा। अगर आप ऑफलाइन यूटिलिटी में होंगे तो आपको वो चेक बॉक्स दिखता है कि यस ये सप्लाईज मैंने थ्रू E-कॉमर्स ऑपरेटर करी हैं। रिफंड मिलता है, बिल्कुल मिलता है जी। अब सुनिए, Amazon ने टैक्स ज्यादा जमा करा दिया, कराना 1 लाख था, करा 4 लाख दिया, कोई बात नहीं, जब तक क्रेडिट योगेश जी को नहीं गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफंड ले लेगा कौन? कलेक्टर। E-कॉमर्स क्या नाम था उसका? फ्लिपकार्ट, जो हुसोएवर। लेकिन अगर योगेश जी को क्रेडिट दे दिया एक बारी 4 लाख का, तो फिर E-कॉमर्स ऑपरेटर रिफंड नहीं लेगा, डिडक्टी यानी कि कलेक्टी यानी कि सप्लायर वो कहेगा जी मेरा ज्यादा TCS है, कैश लेजर का रिफंड ले सकता है। ये एक आया था T-बोर्ड के लिए कि T-बोर्ड जो है वो भी एक E-कॉमर्स ऑपरेटर है। आपको पता है T-बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो अराउंड 15-16 साल पहले सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। सो गवर्नमेंट ने सर्कुलर दिया है कि यस दे आर ऑल्सो द E-कॉमर्स ऑपरेटर्स। ऐसी हमारी रिटर्न दिखती है, ऐसा हमारा वाउचर दिखता है। अब मुझसे किसी ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि कौन बनेगा डेटर, राइट? अब यहां देखिए होटल ने वाउचर, यहां पे क्या होता है, गेस्ट कौन है? सुमित रॉय है। वैसे तो माय डियर फ्रेंड आई एम शेयरिंग द MMT वाउचर जो हमें वहां से आता है। मेरा क्लाइंट जो होटलियर है उस केस में, अब देखो होटल जो थी वो एक सर्विस थी 9.5 की, बट बिकॉज the hotel which is dealing with MMT is a big client, 9.5 से बाहर आ गया, TCS लग जाएगा at the rate of 1%। सो रूम बुक हुआ सुमित रॉय के नाम का, पेमेंट आई होटल को, TCS काटेगा पूरा वाउचर 1199 का रूम, GST लगाया, अपनी कमीशन डिडक्ट की, अपनी कमीशन पे TDS लगाया एंड अपना TCS कलेक्ट किया। इन दिस वे दिस वाउचर होटल वाउचर विल बी फॉर्म। ये टॉपिक करेंगे, फिर आपके इश्यूज डिस्कस करते हैं, उसके बाद TDS पे जाएंगे, राइट? चलिए, अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था टैक्समैन क्या है। ये जो हम गेम्स खेलते हैं ना, किस किसने कैंडी क्रश खेली है? नेटफ्लिक्स, फेसबुक वॉच, ये तो सबने देखा होगा, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, सो मेनी थिंग्स। फ्रेंड्स मारियो, वाओ, वन ऑफ आवर फेवरेट गेम्स। Friends, these are सबने, okay, so these are not E-commerce operator। अजी फर्क क्या है? फर्क ये है सामने वाले का ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसमें ऑटोमेटिक प्रोसेस ज्यादा है। क्या मतलब? क्या दीपिका पादुकोण सामने बैठी होनी चाहिए जब पूनम जी या राहुल जी या योगेश जी या दिव्या जी नेटफ्लिक्स देख रही हैं? नो। क्या मारियो वाले इस पर्सन का सामने होना जरूरी है? नो।
क्या कैंडी क्रश में ह्यूमन इंटरवेंशन है? नो। अगर यूट्यूब लिंक्स चलते हैं, रिकॉर्डेड चीजें चलती हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है या मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन है, वो OIDAR में आती है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं किसी पोर्टल पे लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं, उसमें मेरी अवेलेबिलिटी चाहिए, दैट कैन नॉट बी OIDAR। बट एक चैनल है जो सिर्फ यूट्यूब पे रिकॉर्डेड सेशंस देता है, दैट कैन बी एन OIDAR। क्यों? उसमें मेरी अवेलेबिलिटी, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए। अब आप सब ने कहीं ना कहीं टैक्समैन का डेटाबेस यूज किया है, तो क्या सामने पर्सन की अवेलेबिलिटी जरूरी है? नो। आपका दिल करता है रात को 12 बजे किसी क्लाइंट का रिप्लाई बना रहे हो, केस लॉ चाहिए, आप टैक्समैन में डालते हो, मिल जाता है। दैट इज एन OIDAR। दैट इज एन OIDAR। नाउ लुक हियर, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज सच एज, अब मैंने सबके एग्जाम्पल दिए हैं। एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट, यानी फेसबुक और गूगल पे कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है फेसबुक पे, राइट? कितने प्रोडक्ट्स हमें वहीं से पता चलते हैं, अच्छा ये भी मार्केट में है, ये भी मार्केट में है। प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज लाइक GoDaddy, ई बुक्स, मूवीज, म्यूजिक सॉफ्टवेयर जैसे Gaana.com, टैक्समैन, डेटा रिट्रीवल सर्विसेज, मूवीज लाइक प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, digital data storage, and online gaming. Online gaming is also taxable at the rate of 18%. Twin condition, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए। भाई टैक्समैन अगर बुक सेल करता है तो वो OIDAR नहीं है, वो तो सिर्फ बुक सेल कर रहा है। लेकिन अगर टैक्समैन ऑनलाइन डेटाबेस असेस देगा, यस दे आर OIDAR। सो एक चार्ट है आपके सामने, PDF डॉक्यूमेंट जाते हैं, मैनुअली ईमेल होते हैं। अरे अरे मैनुअली, ये तो ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया, OIDAR नहीं होगा। मैनुअल क्यों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, मैनुअली है। ऑटोमेटिकली ईमेल, यस यस। ऑटोमेटिकली डाउनलोड, यस यस यस। स्टॉक फोटोग्राफ, अरे स्टॉक फोटोग्राफ है, ऑटोमेटिक डाउनलोड है, यस यस OIDAR। सो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, यस यस यस। नॉट प्री रिकॉर्डेड, लाइव ट्यूटर, yes, no, and no. Right? I hope so the points are clear. So what are OIDAR? Prime Video, Facebook, Disney, Ludo King. ये भी बहुत लोग प्ले करते हैं. I don't do. But I've seen many persons playing Ludo. मैंने तो शायद एक दो सीरीज, वो फैमिली मैन और एक दो, बस वो कोई रीसेंट 2 सीरीज देखी होंगी, अदरवाइज वो भी नहीं. So whenever now you enjoy, एक बार याद कर लेना कि ये क्या है OIDAR. Amazon, Flipkart, फूड डिलीवरी, ये OIDAR नहीं है. क्यों? अरे सामने वाला रेस्टोरेंट तो होना चाहिए, ब्यूटी बाजार तो होना चाहिए, फ्लिपकार्ट के थ्रू सोनी का आ रहा है तो सोनी के प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी तो होनी चाहिए. इट इन्वॉल्व्स इंटरवेंशन, अवेलेबिलिटी. फ्रेंड्स, OIDAR सर्विसेज में अगर तो वो B2B सप्लाईज देते हैं तो वो RCM में कवर्ड हो जाते हैं. लेकिन अगर B2C सप्लाईज देते हैं, एग्जाम्पल Gaana.com, बाहर, आपको पता है OIDAR का कॉन्सेप्ट आया क्यों था? मैं बताती हूँ. इंडिया वाला पर्सन इंडिया में रजिस्टर्ड होता है और गाने सुनाता है इंडिया के. आप बोलते हो जी भाई तू इंडिया में टैक्स दे. वही पर्सन आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड होता है, सर्विसेज इंडिया में दे रहा है. तो बेसिकली OIDAR का कॉन्सेप्ट आया था उन लोगों को ग्रास्प करने के लिए जो आउटसाइड इंडिया है और जो सर्विसेज, जो सप्लाईज इंडिया में कर रहे हैं, सर्विसेज इंडिया में. सर गुड्स में तो इंपोर्ट होती है तो आपको ट्रेल मिल जाता है, सर्विसेज में तो कोई ट्रेल ही नहीं मिलता. एज अ रिजल्ट ऐसे लोगों को उन्होंने कहा रुक जाओ, तुम B2C सप्लाईज देते हो, तुम्हें तो यहाँ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा. और तुम तो कहते हो मेरी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई बात नहीं. अब जरा प्रोवाइजो याद करो, वो कहता था
तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा और अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यही कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं बट इन्होंने रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं लिया है। फेसबुक, गूगल, इन सब ने इंडिया में रजिस्ट्रेशन ले लिया। दे ऑल हैव रजिस्ट्रेशंस इन इंडिया। नाउ फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक OIDR नहीं था बट मैंने फिर भी आपको बताया। इसमें हमने नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट B2C नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन रिसिपिएंट को डिफाइन किया गया है कि वो कौन लोग माने जाएंगे, कैसे कैसे। अब देखो, जो नेटफ्लिक्स है वो तो OIDR है, बीच में आ जाता है आपके फोन का गूगल प्ले जहां से आप डाउनलोड करते हो, ये हमारा NTOR है। अब भाई NTOR को तो रजिस्ट्रेशन करानी ही नहीं है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, तो इसमें नेटफ्लिक्स डीम्ड सप्लायर है या गूगल प्ले, कौन है? अगर कोई इंटरमीडियरी बीच में होता है, एप्पल स्टोर, गूगल प्ले, so they will be the e-commerce operator and they will be the deemed suppliers, right? So OIDR की पूरी टैक्सेबिलिटी जब दोनों इंडिया में है, जब एक सप्लायर इंडिया से बाहर है, B2B दे रहा है, B2C दे रहा है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में दे रहा है, उस सारी की टैक्सेबिलिटी इस केस में कवर्ड है। जैसे B2B में RCM लगता है, राइट? NTOR को दे रहा है, पेमेंट की कंडीशंस क्या है, आई हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग हियर। सो जैसे इसमें भी NTOR को देगा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को देगा, तो ओवरसीज सप्लायर पे करेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन B2B में RCM लग जाएगा, इंटरमीडियरी के केस में FCM लगेगा और इंटरमीडियरी लायबल होगा गूगल प्ले, ऐप स्टोर, राइट? आई होप सो द पॉइंट्स आर क्लियर। सर, whosoever wants to ask the query on TCS or e-commerce can ask, and then last half an hour we will be giving to TDS. Any query, sir, they can directly ask me by unmuting them. फिर हम TDS करेंगे, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे। आप अनम्यूट करके कोई भी अपना क्वेरी हो पूछ सकते हो प्लीज। You can write your query in chat box also. Yes, you can ask, you can write, anyway you want to come in interaction। हम एक अच्छी सी GD कर लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे उस टॉपिक पे जहां सब आंसर्स देंगे आपके। So you can ask wherever you feel like। How to get the details of GSTR 8? प्रदीप जी, आप मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, मेरे को बताने दीजिए। जब आपका वो TCS रिफ्लेक्ट करता है ना, तो उसमें उसकी सारी डिटेल आती है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। जैसे ही आप अपनी GSTR 1 भरते हैं, उससे पहले TCS की डिटेल डाउनलोड कराइए। कई बार ऐसे होता है आपकी एक्स्ट्रा एंट्रीज आ रही होती है जो आपने की नहीं होती, गलती से आपका नंबर डल जाता है, या कई बार कम आ रही होती है, तो आपको उसको मैच करना होता है। In this way you get through TCS entries, you get the detail of GSTR 8। अच्छा, मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने सन्ड्री डेटर का, जो मैं पढ़ पाई थी। फ्रेंड, इस केस में जैसे हम होटल के केस में अगर तो पेमेंट MMT से आनी है, हम पर्सन का नाम नोट करते हैं और पेमेंट MMT से आती है, क्यों? TCS उसने काटना है तो हम उसको अपना अकाउंटिंग एंट्री में डेटर रखते हैं। अगर नहीं है तो हम उसको डायरेक्टली, व्हाट इज दिस राजेश जी, 161099 मेंबरशिप नंबर दे रहे हैं आप? हाँ चलिए, कोई और क्वेरी किसी की ऑन दिस इशू? अच्छा, सच सच बताना, कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं? कुछ पता लगा हमने आज डिस्कस क्या किया? कुड यू एंजॉय द सेशन? मुझे लगता है आज पोस्ट लंच में राहुल जी ने सबको हेवी हेवी खाना खा के बिठाया है। एक्चुअली ये टॉपिक इतना हेवी है ना, तो क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अपलोड करेंगे, बाद में क्वेरी आएंगी। कोई बात नहीं, तो सर फिर देन वी मूव फर्दर। शुड वी मूव फर्दर? सर, एक किसी की क्वेरी आई थी जो बहुत बड़ी थी, सो व्हिच आई कुड नॉट रीड, तो प्लीज से दैट पर्सन टू डू दैट।
Yeah, 1 second. Right, Senki ji, I could read that message. Right. Thank you so much. संजय जी ना एक बार में क्लियर, क्या बात है. Thank you for your wonderful remarks which I am getting. Sanjay ji, please you ask your query please. Yeah, Sanjay ji, you please ask, then we will move to TDS. उसमें भी बहुत सारे examples करेंगे हम. संजय जी, are you there? सेंकी जी, कभी कभी तो मेरे घर वाले भी बोलते हैं, तू नॉर्मल बात हमें ऐसे समझा रही है जैसे तो कोई टीचर होती है. So when I read your comment, it reminded me of that. मुझे बोलेंगे तू हमारी माँ है कि हमारी टीचर है. चलिए आगे. आज तो वैसे ही वेरी हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू यू ऑल. So it's such an auspicious day today. संजय जी की क्वेरी फिर बाद में पूछ लेंगे. आई थिंक सो ही इज ऑफलाइन राइट नाउ. You please move. You continue please. संजय जी का माइक काम नहीं कर रहा है. संजय जी is not having no mic to speak. Sir, kindly unmute संजय जी. माइक ही नहीं है उनके पास. संजय जी कोई बात नहीं, मैं आपकी क्वेरी टीडीएस के बाद ले लूंगी. yes, आपकी क्वेरी रह गई है. सिर्फ फ्रेंड एक क्वेरी जो आई थी सन्ड्री डेटर के रिगार्डिंग, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ. सन्ड्री डेटर में अगर आप Amazon के थ्रू सेल्स करते हैं, क्योंकि पैसा Amazon से आना होता है, तो हम उसको Amazon सेल्स के नाम से बुक करते हैं. हम रेफरेंस में who was staying in the hotel, कौन पर्सन था, वो सारी डिटेल, उसके प्रूफ्स या अदर थिंग्स रखते हैं, सेलिंग करते हैं. बट जो सेल्स Amazon के थ्रू होती है, एज पर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हम उसमें Amazon को ही डेटा रखते हैं, क्योंकि TCS तो लगता ही तभी है अगर पेमेंट Amazon के पास आती है. इनवॉइस आपका जरूर जाता है, लाइक मेरे नाम का आएगा ब्यूटी बाजार का, तो वो रेफरेंस में हम करते हैं आंचल Amazon सेल्स. दिस इज हाउ वी डील विद इट, राइट. चलिए, अकाउंटिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. सॉरी सर, अकाउंटिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. I don't know राहुल जी why you feel so, but अब जैसे I personally deal with many organizations, जैसे जिनके पास सैमसंग की एजेंसीज हैं, they all are listed, rather they are the distributors or the retailers who have listed their product on Flipkart or Amazon. We just put the entry Amazon sales to ये product गया to my sales. Amazon कमीशन काटता है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू Amazon. उसने TDS लगाया है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू Amazon टू TDS पेबल, अगर आपने उसको कोई TDS काटा है इनकम टैक्स का तो. सो कहाँ पे आपको इसकी अकाउंटिंग में इश्यू आता है? यू कैन डिस्कस. GSTR 8 मैच करते हैं तब पार्टी का सामने वाले का यस, GSTR 8 मैचिंग में कई बारी क्रॉस लेजर्स जो हैं वो मैच नहीं करते, बट आपको उसे हम क्या करते हैं, एवरी मंथ फ्लिपकार्ट और Amazon से एक स्टेटमेंट आती है. सो आप उनसे वो, जैसे किसी ने अभी पूछा था मुझे GSTR 8 की डिटेल्स कैसे मिलेगी, TCS एंट्रीज के थ्रू मिलती है, और जो उनकी स्टेटमेंट आती है आप उसको मैच करिए. अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो प्लीज राइट अ मेल टू देम एंड यू गेट द रिप्लाईज. अभी मैंने आपको GoIbibo का दिखाया था. Yes, MTR रिपोर्ट आती है फ्रॉम Amazon. वेरी राइट मनीष जी, फ्लिपकार्ट भी भेजता है, GoIbibo भी भेजता है. So these are the 3 e-commerce operator I have been dealing with: Amazon, Flipkart, and this GoIbibo, MTM. They all send, and you can tally your ledgers, or whatever are the discrepancies, you can inform them on month-to-month basis. Right? चलिए, right मनीष जी, चलिए आगे चलते हैं. अब चले आगे. yes. चलिए TCS डील फॉर करते हैं. फ्रेंड्स, अगर मैं TCS की बात करूं, TDS की बात करूं, TDS का सेक्शन है सेक्शन 51. 2% का रेट है, राइट. 2% के रेट पे 1:1 किस पे TDS एप्लीकेबल है? पूरा बड़ा सा सेक्शन नहीं पढ़ेंगे. TDS के केस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे, लोकल अथॉरिटीज पे, गवर्नमेंट एजेंसीज और नोटिफाइड पर्संस एज पर नोटिफिकेशन 50. कौन है ये नोटिफाइड पर्संस? कुछ अथॉरिटीज या बोर्ड्स जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा स्टेक है, सोसाइटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये लोगों पे TDS लगता है. लेकिन
इनमें होने के बावजूद नोटिफिकेशन 50 बोलती है कि आप पे टीडीएस नहीं लगेगा। कब? अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अदर एन एनेक्चर ए में हैं तो आपके ऊपर टीडीएस नहीं लगता। पीएसयू टू पीएसयू डीलिंग में टीडीएस नहीं लगता। और ऊपर वाले पॉइंट्स में ए बी सी डी अगर ये लोग आपस में ट्रांजैक्ट करते हैं, लोकल अथॉरिटीज टू गवर्नमेंट एजेंसीज, तो इनमें टीडीएस नहीं लगता। सर बेसिकली मोटिव क्या था? गवर्नमेंट, अगर तुम नीचे इंडिविजुअल्स प्राइवेट एंटिटीज के साथ डील कर रहे हो तो तुम उनका टीडीएस काट लेना। क्यों? एक चेक रखा गवर्नमेंट ने। टीडीएस एंड टीसीएस आर ऑलवेज द चेक्स। क्यों? अब देखो, खाना सप्लाई करता है कोई रेस्टोरेंट, वो सेल ही ना दिखाए, टीसीएस है। अब टीडीएस, अच्छा कोई एग्जांपल बता सकते हैं कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जिसमें टीडीएस लगता है? कंस्ट्रक्शन के अलावा बताना। हाँ, कंस्ट्रक्शन बहुत पुराना हो गया, कंस्ट्रक्शन में टीडीएस लगता है। आप गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, टीडीएस लगेगा। कोई और एग्जांपल? अभी मैं दूंगी इतनी सारी एग्जांपल्स, फिर जल्दी से लिख दीजिए। लेट्स सी हु कैन प्रोसीड विद इट। ये रही आपकी रेंटल्स। गुड प्रकाश जी, हैव अ लुक। सप्लाई ऑफ गुड्स का एग्जांपल। सबसे पहले आप गवर्नमेंट को स्टेशनरी आइटम्स दे रहे हो, टॉयलेट आर्टिकल्स दे रहे हो, टॉवल्स दे रहे हो, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल गुड्स, बुक्स एंड periodicals, medicines, these all are the supplies to the government. गौतम जी, इंटरेस्ट ऑफ व्हाट नेचर? क्योंकि कई इंटरेस्ट सप्लाई नहीं है, कई इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, राइट? और टीडीएस का भी गौतम जी एक बेसिक रूल है, जैसे टीसीएस का था। क्या? अरे भाई, जहां सर्विस या गुड्स एग्जेम्प्ट होंगे टीडीएस टीसीएस नहीं लगता। IOCL, सर्विस टू IOCL, गुड। एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विस, कार रेंटल सर्विस, जनरेटर रेंटल सर्विस, प्रकाश जी ने रेंटल्स मेंशन किए थे। हायरिंग सर्विसेज, परफेक्ट, रिक्रूटमेंट सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज। अब कुछ कॉम्पोजिट सर्विसेज भी जाती हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, रोड्स एंड ब्रिजेस, रेनोवेशन, repairing, maintenance, these are all the examples of composite supply. अच्छा एक बात बताना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है? बड़ा वाइटल पॉइंट है, आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस? फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन इज ओनली लेबर। नो संजय जी, नॉट एट ऑल। अब ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट स्केड्यूल 2 की 6A एंट्री है, राइट? नाउ कंस्ट्रक्शन 5B एंट्री है। अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखूं एज पर सेक्शन 2119, इसमें 14 चीजें आती है, 14 आइटम्स, जिसमें पहली आइटम कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब वैसे अगर मैं देखूं तो कंस्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का एक सबसेट है। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें गुड्स भी जाते हैं और सर्विस भी जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर कंस्ट्रक्शन देखेंगे जो जीएसटी में रेफर्ड है, द डिफरेंस इज ऑफ लैंड। अब सुनिए संजय जी, अगर आपको एक घर परचेज करना है, लैंड संजय जी का अपना है, और वो बिल्डर के पास जाते हैं और बोलते बिल्डर मटेरियल भी तेरा, लेबर भी तेरी। संजय जी मैंने स्पेसिफिकली बताया, मटेरियल भी तुम्हारा, लेबर भी तुम्हारी। तो तुम्हें लैंड किसका? संजय जी का। इट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब संजय जी को नया घर परचेज करना है, एक बिल्डर बिल्डिंग बना रहा था, संजय जी वहां जाते हैं, बोलते तेरी लोकेशन बहुत पसंद आई है मुझे भाई, तो क्या करूं? ऐसे करो भाई, मेरा तो एडवांस ले लो। लैंड भी बिल्डर का, मटेरियल भी बिल्डर का, जगह भी बिल्डर की, विल बी कवर्ड इन कंस्ट्रक्शन। रेट एंट्री में कंस्ट्रक्शन के रेट डिफरेंट है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रेट डिफरेंट है।
सेकेंड, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में रिफंड अलाउड है, मतलब अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है, सीमेंट 28%, सर्विसेज 18%, आउटपुट कई बार 12% पे गवर्नमेंट को दे रहे हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में रिफंड अलाउड है। कंस्ट्रक्शन सर्विस में रिफंड डीबार्ड है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन 15/2017। कंस्ट्रक्शन में रिफंड नहीं मिलता, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है। जी प्रकाश जी, डिडक्ट करते हैं, they are, if they are covered by the definition, as they are covered by the definition of PSUs until or unless they are privatized, right? चलिए, now coming forward, total value of taxable supplies, एक क्वेश्चन और बताइए। अब प्रकाश जी को गवर्नमेंट को रेंटल भी देने थे, कार के भी देने थे, जनरेटर के भी लेने थे, बिल्डिंग भी दी हुई थी। He makes 3 separate contracts, या कंस्ट्रक्शन देनी थी, 3 कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, टीडीएस लगेगा? यस और नो? यस और नो? नो, देयर मस्ट बी अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट टैक्सेबल सप्लाईज का, अगर वो 2.5 लाख से एक्सीड करेगा तो लगेगा। अगर एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है, बिफोर 1/10/2018 है, या एडवांस उसका 1/10, क्योंकि 1/10/18 से पहले टीडीएस नहीं था, पेमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज बेसिस है, सेस का कंपोनेंट है, इन सब पे टीडीएस नहीं लगता। टीडीएस हमेशा लगेगा टैक्सेबल सप्लाईज का। पर्सन का रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जिसका टीडीएस कटना है, जिसका टीडीएस कटना है उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एग्जेम्प्टेड और निल रेटेड का नहीं कटता, कंपोनेंट सेस कंपोनेंट में टीडीएस नहीं कटता, रिवर्स चार्ज में टीडीएस नहीं कटता। कॉन्ट्रैक्ट अगर मल्टीपल है, एक कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से नीचे है, जैसे इसमें एबीसी ने हेल्थ डिपार्टमेंट से 3 कॉन्ट्रैक्ट किए, तीनों 2.5 लाख से नीचे थे, एग्रीगेशन नहीं होगा, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा। इसके अलावा टीडीएस डिडक्टर तुम्हारी रिटर्न जीएसटीआर 7 में जाती है, 10 डेज के अंदर जाती है, नहीं तो तुम्हें भरना पड़ेगा इंटरेस्ट और पेनल्टी, राइट? अब तो पेनल्टी का अमाउंट भी कम हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रही हूँ। टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन में एक फर्क है, अ डिफरेंस। क्या? टीसीएस में मैंने कहा था जिस स्टेट में अमेज़न है, जिस स्टेट में फ्लिपकार्ट है, उसको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है। क्यों? वहां की लोकल सप्लाई के केस में वहां का टीडीएस और टीसीएस जमा कराना पड़ता है, टीसीएस डिपॉजिट कराना पड़ता है, बट टीडीएस में ऐसा नहीं है। अब देखते हैं, टीडीएस में मुझे हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। लेट्स हैव अ लुक। अब यहां देखिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई, C+S, तो टीडीएस किसका डिपॉजिट होगा? C+S का, कोई बात नहीं। सप्लायर ए स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर ए स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन अनदर स्टेट, यहां बी है, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो आईजीएसटी का 2% लगेगा। ओके। सेकेंड, सप्लायर ए स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई बी स्टेट में है तो ये भी इंटर स्टेट सप्लाई, टीडीएस 2% लगेगा। नाउ प्लीज लुक हियर, डिडक्टर यानी गवर्नमेंट वो उसी स्टेट में थी, इज रजिस्टर्ड इन स्टेट बी, इसमें वो स्टेट बी में थी, इसमें गवर्नमेंट यानी डिडक्टर स्टेट ए में था, स्टेट ए में था। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द लास्ट केस, location of supplier and place of supply
which is different from the state where the deductor is registered. Deductor किसी और स्टेट में है, ना लोकेशन ऑफ सप्लायर पे है, ना प्लेस ऑफ सप्लाई पे है. अरे कोई एग्जाम्पल तो बता दीजिए. चलिए, इस केस में टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होता. लेट्स टेक विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. हैव अ लुक. सारे केसेस में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है. ओके. गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कहां पे है? रिसिपिएंट वेस्ट बंगाल में, मतलब स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिडक्टर की कहां है? वेस्ट बंगाल. डिडक्टर यानी रिसिपिएंट का है वेस्ट बंगाल में, सप्लायर भी कोलकाता में. वहां का ही काम करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कोलकाता में. कोई बात नहीं, सी और एस लगेगा और टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन सेकंड केस देखते हैं. दिल्ली में सप्लायर सप्लाई कर रहा है पंजाब में, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा जी. ठीक है. सब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ कहां की है? पंजाब की. कोई बात नहीं, पंजाब की है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वहां पे है, टीडीएस लग जाएगा. अब थर्ड केस देखना. लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली. गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर को बोला, भाई दिल्ली में बंगला साहब रेनोवेट कर देना. ये तो किसी और स्टेट में बैठा है, ना लोकेशन ऑफ सप्लायर पे है, ना प्लेस ऑफ सप्लाई पे है. एज अ रिजल्ट सी और एस तो लगाएगा ये इसको, दिल्ली का दिल्ली में सप्लाई कर रहा है, लेकिन टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, बिकॉज the government of West Bengal is the deductor is sitting in some other state. हम उसको नहीं बोलेंगे भाई तू दिल्ली आके रजिस्ट्रेशन ले ले. नो, as in case of TCS. I hope the point is clear with the examples. Next, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने सारे इश्यूज देखते हैं. कुछ कुछ इश्यूज इसमें से टेकअप करते हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 3 लाख की पेमेंट की. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिडक्ट होगा? अरे बिल्कुल होगा भाई, 2.5 लाख से ऊपर है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर्विस है, ओके डन. एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 5 लाख की पेमेंट की प्रिंटेड बुक्स की, एंड प्रिंटेड और इलस्ट्रेटेड पोस्ट कार्ड्स. बुक्स की पेमेंट 2 लाख. मैंने बुक्स क्यों मेंशन की माय डियर फ्रेंड्स? बुक्स आर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, बुक्स पे नहीं लगेगा. सिर्फ और सिर्फ 3 लाख की पेमेंट पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख पोस्ट कार्ड जो टैक्सेबल सप्लाई है. फाइनेंस डिपार्टमेंट को 1.5 लाख के रेंटल दिए. अरे क्यों लगेगा? 2.5 लाख से नीचे का कॉन्ट्रैक्ट है. नेक्स्ट, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का, 2.6 लाख का, इंक्लूडिंग जीएसटी. नहीं लगेगा. अगर मैं बोलती हूँ जीएसटी का रेट 12% है गवर्नमेंट सप्लाईज में, अरे 12% अलग करो, वैल्यू आएगी 2,32.32 लाख. एज अ रिजल्ट बिलो 2.5 लाख नहीं लगेगा. पॉइंट देयर बाय बिना जीएसटी के देखना है. थर्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. थर्ड क्या, बहुत सारे हो गए. कोलकाता ने एक हेवी जनरेटर परचेज किया, चाहे कैपिटल गुड्स हो, इंटर स्टेट सप्लाई. 5 लाख का जनरेटर, 5 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, टीडीएस लगेगा 2% के रेट से. आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर. लेकिन अगर सर्विस एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस नहीं लगेगा. एग्जेम्प्ट केस ऑफ सर्विसेज और गुड्स में, अब जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट को किसी ने हेयरिंग एड्स दिए, वो एग्जेम्प्ट है, टीडीएस नहीं लगेगा. एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट्स पे टीडीएस नहीं लगता. रजिस्ट्रेशन की बात करूं, जो पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट करना है उसको पैन बेस्ड और टैन बेस्ड में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है एज पर सेक्शन 24.6. विंडो आपके सामने है. इस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ, वेरी वेरी कॉमन नाउ. फ्रेंड्स, ऐसे दिखती है टीसीएस की एंट्री. आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करते हैं ये आपके कैश लेजर में चली जाती है. दिस इज हाउ द टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड
or the TCS credit received pops up in your 2A. 2B में ये नहीं आता, इसलिए मैनुअली पंचिंग करनी पड़ेगी. GSTN ऑफ कलेक्टर, ट्रेडमार्क, कौन सा पीरियड, क्या ग्रॉस वैल्यू थी, एवरी ट्रांजैक्शन इज गिवन. रिफंड वैसे ही मिलता है जैसे उसमें था. So with this, I end up my deliberation, and I now open the house for any discussion or any issue, any query which they want to ask. एक संजय जी की query थी सर, वो ले ले. Yes, yes ma'am. संजय जी की क्वेरी ढूंढनी पड़ेगी. संजय जी दोबारा कॉपी कर दीजिए प्लीज. Yes, I'm doing, madam. I got that. One person selling his services to Google for advertising as under the person purchasing space for advertisement in various applications developed by local developer and person making advertising as pre-Google advice. Person selling his services to Google. पहले तो संजय जी मैं इतने पोर्शन पे चलती हूँ. Person selling his services to Google. I also have one of my clients जिसको गूगल से इनकम आती है. तो आपकी क्वेरी भी मुझे वही है कि उस पर्सन को इनकम आती है गूगल से, एडवर्टाइजिंग स्पेस, एंड द पर्सन परचेजिंग स्पेस फॉर एडवर्टाइजिंग इन वेरियस. अच्छा, सेकंड पर्सन advertising in various applications developed by local developer and person making advertising as pre-Google advice. He is getting payment in dollar from Google, and after getting payment, he making payment to local person who provides space for advertise, who is unregistered. So what liability for GST and TCS to the person? Whether RCM is applicable, TCS liability, the person making, सर आपने रीपोस्ट की है क्वेरी ना. हाँ. एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट बिलिंग इज डन एट अ रेट. अरे बाबा इतने तक चलते हैं पहले. सर देखिए आपकी जो क्वेरी है जितना मैं समझ पाई हूँ, अदरवाइज यू कैन, क्योंकि आप अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं. अगर कोई पर्सन गूगल से डील करता है, आई टोल्ड यू गूगल ने इंडिया में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, क्योंकि गूगल ने इंडिया में रजिस्ट्रेशन ले रखा है. बट आपको चेक करना होगा आपकी डीलिंग गूगल कहां से है, ओवरसीज या इंडिया. पेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में आ रही है. आई एज्यूम कि ये गूगल फॉरेन है. ये जब गूगल फॉरेन होगा, दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. एंड माय क्लाइंट आल्सो, वी वर डीलिंग विद ओवरसीज गूगल. सो एज अ रिजल्ट हमने उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में क्लासिफाई करते हैं. आप विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट किसी भी तरह से उसका रिफंड अप्लाई कर सकते हैं. अब बात आई जो आप पेमेंट मेक फॉर करते हैं. अगर आप पेमेंट इंडिया में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, लोकल वेंडर को, यू आर मेकिंग द पेमेंट, in that case there will be no provision of RCM. लेकिन अगर कोई पर्सन जिससे कि जो आपका एक्सपेंडिचर है, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, वो ओवरसीज पर्सन है, आप उससे पहले ले रहे हैं, तो आपके ऊपर RCM एप्लीकेबल हो जाता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, और आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा. बट क्योंकि आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कवर्ड है, उस इनपुट का हम रिफंड ले लेते हैं. बहुत सारे हमारे फ्रीलांसर्स हैं जो इसके थ्रू डील करते हैं. गूगल जो कमीशन डिडक्ट करता है, वो कमीशन भी आपके P&L में एक एक्सपेंस बुक होता है. सो उसके ऊपर भी आपको रेप्रिकॉशंस चेक करनी होती है. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ अपवर्क और गुरु, जिनके थ्रू आजकल बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग हो रही है. इन लोगों ने इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है. सो जो पेमेंट्स, जो कमीशन गूगल अपवर्क और गुरु डिडक्ट करते हैं, इस केस में उनको हम RCM में कवर कराते हैं. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होती है, उनका रिफंड मिल जाता है, बट पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी. इसके अलावा आपने क्या पूछा? देयर आर ऑल्सो, अरे ये विकास गटानी सर, प्लीज से, बिकॉज द क्वेश्चंस आर क्वाइट लेंथी. So I request the person concerned. संजय जी का तो चलिए इशू था कि वो डायरेक्ट पूछ ले. हेलो जी, आप यस विकास जी.
जी, हमारा एक क्लाइंट है, जैसे उसमें एक ई कॉमर्स पोर्टल है, उसमें ऐसा होता है कि रीसेलर भी लिस्टेड होते हैं। सेलर तो लिस्टेड है ही, अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा है, फिर रीसेलर भी प्रोडक्ट की कॉपी वहां से करके अपने सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करके रीसेल करता है। सपोज प्रोडक्ट नॉर्मली अगर डायरेक्ट सेल होगा फ्रॉम सेलर टू डायरेक्ट एंड यूजर, इन दैट केस वो प्रोडक्ट मान लो सेल हो रहा है 425 रुपीज पे, और वही अगर जब रीसेलर बीच में पिक्चर में आ जाएगा, इन दैट केस वो प्रोडक्ट सेल होता है अराउंड 650 प्लस इंक्लूडिंग जीएसटी, करीब 250 रुपीज 230 रुपीज का मार्जिन उसका रीसेलर का रहता है। वो डिडक्ट होने के बाद जो मेन सेलर है उसको उतना ही पैसा मिल रहा है जैसा कि जितना डायरेक्टली अगर वो सेल करता है आउटसाइड पार्टी को। समझ गई सर, आप बोलिए। इशू क्रेडिट नोट और नोट, क्या, दोबारा बोलिए। क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं जब अमाउंट उसको कम रिसीव हो रहा है इन दैट केस। सर एक बात मुझे बताइए, अब हम आपकी एग्जाम्पल को अगर रीफ्रेम करें, देयर इज अ पर्सन ए के पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, बी रीसेलर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ई है, और वो सी कस्टमर को माल बेच रहा है। ओके, यही आपका एग्जाम्पल है ना। हाँ। ए से प्रोडक्ट बी को, ई कॉमर्स पोर्टल तो एक ही है, ई के नाम से, उसमें सेलर भी है और रीसेलर भी है, और अल्टीमेट कंज्यूमर है। अल्टीमेट कंज्यूमर को प्रोडक्ट 600 रुपए का जा रहा है, 600 रुपीज का, जबकि ओरिजिनल जो सप्लायर है उसको 400 रुपीज जाने हैं, 200 रीसेलर का मार्जिन। ओके, इज दिस योर ट्रांजैक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट? यस यस मैम। राइट, नाउ टेल मी, जो इनवॉइस जाता है वो किसका जाता है? रीसेलर का जाता है, राइट और रॉन्ग? नहीं, सेलर का जाता है, रीसेलर अनरजिस्टर्ड है, सेलर का इनवॉइस फुल अमाउंट से जा रहा है। ओके, आप कह रहे हो जी आपके केस में सेलर का इनवॉइस पार्टी को जा रहा है विद द फुल अमाउंट। पेमेंट कलेक्शन तो जो बिल बनाते हैं वो ई कॉमर्स पोर्टल वाले ही बिल बना के देते हैं, वही डिस्पैचिंग के साथ चला जाता है बिल, और उसमें फुल प्राइस के साथ चला जाता है। बिल्कुल सर, बट ई कॉमर्स ऑपरेटर कभी भी अपना बिल नहीं लगाता। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है, वो बिल आपके सेलर के नाम का ही देता है, राइट? अब वो सेलर नंबर 1 डाल रहा है, आप ये कह रहे हो रीसेलर नहीं डाल रहा। बिल टू शिप टू डालता है वो, बिल टू होता है सेलर रीसेलर को, और शिप टू होता है जो उसकी फाइनल एंड कंज्यूमर है, वैसा करता है। राइट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो बिल टू शिप टू डालता है। इसका मतलब 2 सेल इनवॉइस बनते हैं इसमें, 2 सेल इनवॉइस। इफ यू परमिट मी, मैं 1 मिनट आपको वो दोबारा से स्क्रीन लेना चाहती हूँ, सो दैट हाँ मैं आपको इसमें ऐड करके आपका एग्जाम्पल बताती हूँ। जस्ट गिव मी अ व्हाइल, लेट मी ऐड अ ब्लैंक स्लाइड टू इट। सर, कैन यू सी द ब्लैंक स्लाइड? Yeah. Okay, let me make it a slideshow. Yes, supplier number 1, supplier number 2, e-commerce operator, and the customer. E-commerce, sir, there are 2 billings. There are 2 billings, क्योंकि बिल टू शिप टू तभी आ रहा है। कारण देखिए, एक बिलिंग, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने नाम पे बिलिंग नहीं करता। एक सेल हो रही है S1 टू S2, और दूसरी सेल हो रही है S2 टू कस्टमर। एज अ रिजल्ट जो S1 टू S2 बिल जाता है, दिस इज अ बिल टू शिप टू मॉडल। बिल टू, इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली लिख देती हूँ, बिल टू S2, शिप टू C। अब ये जो S1 S2 को बिलिंग करेगा, ये 400 रुपीज की करेगा। एक बिल और है जो S2 टू C होता है, S2 टू C, वो ईवे बिल में नहीं चढ़ता। ईवे क्यों? प्रोडक्ट की डिलीवरी तो डायरेक्टली S1 C को करवा रहा है। ये जो बिल होता है ये 600 रुपीज का बनता है, जिसमें S2 टू C की बिलिंग होती है। पेमेंट कंज्यूमर के थ्रू ई कॉमर्स के पास आती है 600 रुपीज की, 600 रुपीज की। ये पेमेंट S2 को जाएगी 600 रुपए। S2 से ये मतलब वो क्या करता है, 200 रुपए इसको भेज देता है, 400 उसको भेज देता है, बट अल्टीमेटली इसकी रिसीट कितनी है? 600, और इसकी रिसीट कितनी है? 400। सर, आप जो मुझे क्रेडिट नोट की बात कर रहे थे, आर यू देयर विकास जी? या मैम।
आप जो मुझे क्रेडिट नोट की बात कर रहे थे वो डालना ही नहीं पड़ता, मैं तो अपनी सेल ही 400 से बुक करती हूँ। नहीं लेकिन मैडम जो उनका शीट आता है ना पोर्टल का, एक्सेल शीट जो बन के आता है, और जो बिल वो प्रेजेंट जब ऑर्डर रिसीव होता है और बिल जो सिस्टम उनका जनरेट करके देता है ई कॉमर्स पोर्टल का, उसमें सेलर का नाम है और शिप बिल टू ट्रांजेक्शन जो रीसेलर है उसका नाम है और एंड यूजर का नाम है, और वो बिल बन रहा है फुल वैल्यू से। इन दैट सर बिल्कुल 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 विकास जी, मैं यही तो बोल रही हूँ, कस्टमर को जो बिल जाता है वो तो फुल वैल्यू का ही बनता है। हाँ, लेकिन इसमें जो सेलर है मेरी पार्टी, मतलब जो हमारे क्लाइंट हैं वो सेलर हैं और फुल अमाउंट से कर रहे हैं, तो बाद में ये ट्रीट नहीं किया जाएगा कि बिल आपने कम कर दिया, कम शो कर दिया बिल। सर इसका करेक्ट मैकेनिज्म जो बनता है वो 2 बिल काटने का बनता है। देयर मस्ट बी 2 बिल्स, एक बिल फ्रॉम S1 टू S2, another बिल फ्रॉम S2 टू C। S2 अनरजिस्टर्ड है इस केस में, एक ये भी इशू है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आप कहते हो जी ये मेरा S2 अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है, ये सिर्फ पोर्टल से अब एक बात बताइए, जो गुड्स है उनको उठाता है और अपने सोशल मीडिया में पब्लिश करके और उनको अपने कस्टमर्स को, एंड यूजर को सेल करता है। राइट सर, अब एक बात बताइए, जो S2 आपने मुझे कह दिया कि भाई ये मेरा S2 है, दिस इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इज ही मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई? नो, सेम स्टेट। जैसे अगर गुजरात से तमिलनाडु गया, तमिलनाडु में सेल कर दिया उसने। सर ये गुड्स है कि सर्विसेज है? गुड्स। ये गुड्स है। सर एक बात बताइए, हाउ S2 कैन बी अनरजिस्टर्ड? इसीलिए आपका वो बिल S1 से जा रहा है, इसीलिए आपका वो बिल S1 से जा रहा है। समझिए दोबारा, any person supplying the goods through e-commerce operator has to take a mandatory registration. सर इंटरेस्टेड सप्लाई भी हो गया। S2 तो खुद को, इसका मतलब S2 सेलर नहीं है, S2 अपने आप को खुद को सप्लायर नहीं बना रहा है, S2 इज ऑल्सो अ मीडिएटर ओनली। सो आपको क्या करना चाहिए, 600 रुपीज से सेल बुक करनी है S1 की, क्योंकि आपका क्लाइंट तो S1 है ना, आपको S1 में 600 रुपीज से सेल बुक करनी है। आप 200 रुपीज का सामने एक्सपेंस डाल सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो आपका TCS डिडक्ट हो रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका TCS कितने पे ले रहा है? वो उसी वैल्यू पे ले रहा है, वो उसी वैल्यू पे ले रहा है जिसपे उसको मतलब फाइनली जो देना है उसको अमाउंट, जो अगर मान लो डायरेक्ट सेल होता 400 पे ले रहा है। हाँ, इसी वैल्यू पे ले रहा है। 400 पे। हाँ जी, उस केस में वही आपको सर क्रेडिट नोट एंटर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मैच द ट्रांजैक्शन विद ई कॉमर्स ऑपरेटर। बट क्रेडिट नोट एंटर कर पाएंगे इस केस में? देयर इज सर एक्चुअली क्रेडिट नोट इज इशूड इन द, अब आप ये कह रहे हो कि भाई वो तो मुझे 400 रुपीज का ही क्रेडिट देता है, हाँ, और वो मेरा TCS भी 400 से डिडक्ट कर रहा है। सर I doubt the way your e-commerce operator is carrying on the transaction. Reason, सेक्शन 24 का वायलेशन है, गुड सप्लाई हो रहे हैं, अगर वो S2 को पैसे दे रहा है तो S2 का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। S2 को सिर्फ कमीशन पार्ट जाता है, मान ली 200 ही जाएगा नेट उसको। सर 200 ही जाएगा, चलिए S2, अब आप अगर मैं ये बात कहूं, फिर S2 सर्विसेज दे रहा है। S2 इसका मतलब S2 वहां पे सर्विसेज के लिए रजिस्टर्ड है, तो आप नोटिफिकेशन 65/2017 का बेनिफिट ले रहे हैं। विकास जी, हाँ जी, आप यहाँ 65/2017 का बेनिफिट ले रहे हैं। 20 लाख, राइट? सॉरी 20 लाख जो, यस, क्योंकि वो कहता जी मैं तो कमीशन के लिए रजिस्टर्ड हूं, मैं तो सर्विसेज के लिए हूं, सप्लायर ऑफ गुड्स तो 400 ही ले रहा है। सो इस केस में आप फिर 400 रुपीज अपनी सेल बुक करेंगे, बट आप इनवॉइस दे रहे हैं इस केस में 600 रुपीज का। Let me check the transaction, because I don't want to make the simple right comment on it. What I will do, I will send this query to directly to you. Through the transaction completely, I will revert you on it for sure. Share Excel sheet which we are getting from the e-commerce portal. Sure, sir. If you can give your email ID. Just a small concept. Just a small concept. Request that you will get the revert on Sunday, because tomorrow I am not available, so I will revert you by sure. जी जी।
Swati ji is there. Swati, Yeah, is there? No, third. Yes, sir. Please. Swati is there. Swati is there. Okay. Any other question, please? Vikas ji, Kamlesh ji has mentioned one thing, that he is also dealing with such a client. It is a sort of Meesho concept. I don't know Meesho, to be very honest. But this says, but see the point of difference which he is making and which you are telling me. He says we are getting our TCS on 600 rupees. So you must need to check the facts once. Because he is saying the TCS is on 600 and you are saying me the TCS is on 400. Okay. So any further question? Anyone having any query and all that? So, ma'am, it was very nice and we enjoyed a lot. Very ambiguous and complicated topic, but we enjoyed that. For vote of thanks, I want to invite Mr. Abhishek Mittal, who was the past chairman of our branch of Surat. So please, over to Abhishek, please, for vote of thanks. Abhishek, unmute कीजिए आपको. Unmute yourself, please. Sorry. On behalf of Textile Market CP Study Circle, I would like to thank our today's guest speaker and very learned speaker, Aanchal Kapoor from Amritsar. Ma'am, we have listened to your various lectures on YouTube also, and we thank you very much for the time and the valuable resources which you have spent today for all the members of Textile Market CP Study Circle on such an illustrious topic and very detailed topic, and something very good about the marketplace model, inventory model, all about the e-commerce player. It was a very good seminar. We would request from all the members that please do share your PPT also. That was for future reference purpose also. I would also like to thank Rahul, the deputy convener of the Textile Market CP Study Circle, to organize such a wonderful program, because we are complying with the TS and TDS provisions, but not in so details and not in so intricately with the aspect to the business processes. And you have explained the businesses, whether it's B2B, B2C or e-commerce model, very much in depth. And again, I would like to thank all the members of the Textile CP Study Circle, which is such a active CP Study Circle with such a large participation of members. And I thank all of the members from the wholeheartedness and the gratitude to all. Thank you very much, Rahul, for inviting me and giving me this opportunity to give vote of thanks. Thank you, Rahul. Thank you, ma'am. Thank you so much, Abhishek. I'm also very thankful to all the participants for their active participation in the chat. Ma'am, you would not find such a lovely participation anywhere else. I'm very much assured that in Amritsar also you will not be getting this kind of audience which you are getting in Surat. Sure, sir, sure. Thank you, ma'am, for your time and resources, please. Thank you, ma'am. My pleasure, Rahul ji. Thank you so much for that. And I'm obliged to the study circle for giving me this opportunity. Thank you.